Okay, let's suppose you enter wrong username. If you enter wrong username, immediately you will get a message, this one is a wrong username. Okay, that means the user doesn't exist. That is my problem statement. Listen carefully. Okay, when you enter accurate username, immediately it will ask for the password. Immediately it will ask for the password. What exactly happening over here? In this scenario, first they are checking their username, whether this username exists or not. If this username doesn't exist, they never ask you about the password. If this username exists, then they will ask the password. Then they will ask the password. वो आपको बोलेंगे कि please enter your password. If your username doesn't exist, then they will simply inform you a message, this user not available, please check your username. So same thing that we are going to be perform right now with the help of C++ and the concept of the array, okay, and the concept of the program that we already discussed into the last session, comparison of two strings. Yes. So these two programs, the concept of comparison of two strings and the concept of the array, your complete first username and password will be generated. But this time we won't get any data from the database. Okay, we won't get any data from the databases. For this point of time, you will get a data that is the dummy data, or you can say the static data. The meaning of the static data is that you will store the username and password, okay, statically. The statically means that we will define a variable, okay, we will define a character array. In this character array that you will store user, in this character array that you will store the password. Okay, but in the real time scenario, what exactly happens? In the real time scenario, this username and password will come from the databases. Yes, this username and password will come from the databases. Okay, but this point of time we don't know about the databases, but yes, later on when you understand the concept of the databases, at that time you can connect this program with this, okay, with these databases. Now I think the picture is very much clear what exactly that we are going to be do. For this point of time, we are making a username and password with the help of the comparison of two string, which program that we discussed the last session, and the concept of the array, and then you are performing this scenario, that is the username and password, that the basic requirement to enter into the any application. This is the first barrier. Okay, this one is the first hurdle that you can say. If you want to enter into any of the application, the first thing is that you are supply the username and password. Why I am focusing on this particular scenario? Because in future, whenever you are gonna to make any product, any application, this one would be the first barrier for the same. Okay, this one would be the first barrier for the same. In the production, it is the highly required that you must have a login page. Until unless your application doesn't have any login page, that you are not supposed to enter into the further functionality. Okay, so this one is the very basic, and we will try to cover I don't know, Shreya. We will try to cover this scenario with the help of C and C++, basic specifically for C++ and the concept of the string matching and the concept of the array. Okay, now understand this concept. So logic is almost clear to everyone that yesterday we discussed about comparison of two strings. That one the logic that we discuss into the great detail. So note, I am not going to the logic part. If anyone having any doubt regarding that logic, please do let me know. Please, before proceed further, if anyone having the doubt regarding that logic, how you can compare the two strings, please do let me know before proceed further. Please, anyone having. Okay, that's great. So now I am moving further. So now you better understand with this scenario that what you are supposed to do right now, and we know the basic logic how you can comparison of two string. But the thing is that now we are going to be implement in the concept of the username and password. Exactly the scenario is same. The scenario is same. What ये क्या हो रहा है जी? नमीशा सिंह starting meeting. What exactly this is? तो ये क्या हो रहा है? कोई anyone can tell me कि ये क्या हो रहा है?
ये नमीशा सिंह कभी कोई स्टार्ट कर रहा है मीटिंग? सर वो एचओडी मैम है, आपकी सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है यार, पहले बोलते हैं यार, क्या करते हो, मैं कमाल करते हो यार, मैं तो पूरा लिख रहा था स्क्रीन के ऊपर, पहले बोलते। अब ठीक है, अब विजिबल है? यस सर। यस सर। ओके, गुड गुड गुड, मैं तो पूरा लिख रहा था यार स्क्रीन के ऊपर। चलो एनीवेज, सो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया व्हाट एग्जैक्टली दैट वी आर गोइंग टू बी डू? यस सर। ओके गुड। चलो, नाउ आई एम मेकिंग ए प्रोग्राम फॉर द सेम। सो इस प्रोग्राम को करने के लिए व्हाट आई एम गोना टू बी डू, static username and password. Okay, character. Let's suppose I'm saying this is the existing username. Okay, this one is the existing username. So I am taking user like this. Okay, my name. So it's not a Python. So double quotes. Okay, and static password. Static password. Okay, and the static password is Verma. Now understand this concept. ठीक है जी। इन द रियल टाइम सिनेरियो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, चलो मैं थोड़ा सा आपको रियल टाइम सिनेरियो के बारे में भी एक्सप्लेन करता हूं कि होता क्या है रियल टाइम सिनेरियो के अंदर। थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द स्कोप जाऊंगा, ठीक है, सी प्लस प्लस की दुनिया से थोड़ा सा बाहर आऊंगा, ठीक है, माई सिक्वल की दुनिया से थोड़ा सा बाहर आऊंगा, आपके 2 या 3 मिनट लूंगा, ठीक है। In this application, because we don't know about the databases, then what we are going to do over here, we just defining a static user and static password. Okay, we just define a static user and password, but in the real time scenario this user will come from the databases, any of the databases. Okay, any of the database, that doesn't matter, whatever the backend is there. So what exactly that you are supposed to do in the real time scenario, you have to pick this username and password from this database. Let's suppose this one table is a registration table, or you can say the username or password table. So this will come from these databases. Now the question is, which database will be used to store the username and passwords? Now it's totally depend upon the application to application, product to product, because this one is the most important concept. Let's suppose if I discuss about the Facebook, okay, or if I discuss about some very small application. Please unmute mute yourself, please. Okay, if I discuss about the Facebook, if I discuss about the small application, both are different applications. The Facebook is a very large application. There are n number of users, trillions of users are there. But in small application, let's suppose you are making a software or you are making an application that is only for the 100 people, or you can say only for the 1,000 people. Now it's totally depend upon my application, what application that I'm going to be design. If I'm using Facebook, Instagram kind of things, or you can say the LinkedIn kind of things, or you can say any of the social networking kind of things, there can be trillion of customers. If there are trillion of customers, at that time you cannot go with the RDBMS kind of things. You cannot proceed with MySQL. You cannot proceed with Oracle kind of things. Yes. But in the small application, let's suppose there are only 1,000 users, or you can say the 1 lakh users only. At that time, you can go with the MySQL, you can go with the Oracle kind of things. But in the context of the Facebook, if I'm specifically talking about the large application or huge application, at that time, you are not supposed to go with this kind of databases. So now the question is, which database will be used? That is the most critical question. Sir, in these scenarios, the NoSQL kind of things will be used. That's not only SQL. Okay, if I elaborate further into the NoSQL into the great detail, then you will categorize these NoSQL into the 4 categories: column oriented, document oriented, graph oriented, key value oriented. Now you come to me, you specify your requirement, that your requirement is you are supposed to design an application such something like Facebook. Okay, something like Facebook. Now being you are a non-technical person, but I am the technical person. I am the leader of the team. Just imagine this scenario. I am the team leader. I am leading a team. Under my observation, there are 4 to 5 engineers who are working with me. But I am the front face that I have to interact with the client.
Okay, the client is non-technical person. He will simplify here requirement that I want this kind of application. Now, being a technical person, because I have to elaborate all these things to my technical team, I will categorize this problem into the CAP theorem. This one is the CAP theorem. Now, what exactly this CAP theorem? This one is a very versatile topic. I'm just giving you the full form for the same: consistency, availability, and the partition tolerance. I will categorize your application. I will categorize your requirement into this CAP theorem. According to this CAP theorem, I will guide my team. Okay, now we want to achieve this CA, the subset of this CAP theorem, that I want to achieve this CA, I want to achieve AP, I want to achieve CP. Because there is no software which can achieve all these things: consistency, availability, and partition tolerance. So I have to find out the subset according to the problem statement, what exactly the problem statement of the client. So finally, just imagine it, I find it out, my problem statement is fall under this category, that is the consistency and the availability. According to this, now I have to move further. According to this, that now I have to move further. Now I will decide, okay, I want to achieve CA. CA means consistency and availability. Now which framework, which software, which tools which are available which can provide this CA? For example, MongoDB. Okay, for example, your Cassandra. For example, your NoSQL. Okay, for example, your Neo4j. For example, your Redux. So these are the frameworks or software which are available, okay, databases which are available specifically to handle such kind of problem statement. So this one is a very versatile topic beyond your subject. Okay, but we are discussing about C++, but exactly, yes, this is the real-time scenario into the large industry where the such kind of application are maintained. There is no single software, or you can say there is no single single programming language who is responsible to design all the component of this particular application or this particular software. They use a number of terminologies. It doesn't mean that there is only one application, one programming language, PHP. Okay, sir, I know PHP. Now I am able to design this Facebook. No, because there are combination of multiple languages, multiple frameworks, multiple tools, multiple services even. Okay, so now back to this point. Now you little understanding about this scenario, what exactly happens when we this concept is for the architecture level. This concept is for the architecture level. Okay, if you are working into the organization and let's suppose you are a team leader, now the question is, sir, we don't know all these things, so can we get a job into such kind of companies? Yes, but in the initial age you cannot become the team leader. If you want to become the team leader or team manager, at that time you must have experience, 4 to 5 years of experience. With 4 to 5 years of experience, then you are supposed to become a team leader or team manager, because you handle such things in great detail and number of times. So this one is the entire scenario. Okay, so now I'm moving to the just little part for the same. So now you better understand how you can get this username and password. This totally depend upon the application to application, which database that you are going to be used, that totally depend upon the application. If you understand it, then you become the, you can say, the architect level. Okay, the architect of the software development, or you can say the application development. Okay, so what exactly we did, हमने स्टैटिक यूजर नेम और पासवर्ड ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है ये कहां से आ रहा है, ठीक है, लेकिन फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट नो अबाउट दी डेटाबेसेस, सो हमने ये स्टैटिक यूजर नेम और पासवर्ड ले लिया, यानी कि जो यूजर है वो नितिन है, जो पासवर्ड है वो वर्मा है। ओके, ठीक है सर, डन। नाउ व्हाट नेक्स्ट सिनेरियो इज, सो मैं दो वेरिएबल ले रहा हूं, एरे ले रहा हूं बेसिकली, कैर यू, ओके, कैर पी, ठीक है जी, कैर पी। तो अब इसमें क्या होगा, व्हाट एग्जैक्टली हैपन इनसाइड दिस। अब इसके अंदर क्या होगा, जो आप यूजर नेम डाल रहे हो, जो यूजर नेम डाल रहा है, दैट विल एंटर ओवर हियर। जो पासवर्ड यूजर डाल रहा है, दैट विल एंटर ओवर हियर, and that username password will be matched with this. If these two string, whatever the string user enter and whatever the string that I define statically, so if both strings are matched, then what will be happen, it will proceed further. It will ask you, please enter your password.
if this username, this one static username and whatever the username that you entered, if it doesn't match, then what will be happen? It will simply say you this username is invalid. If it is matches, then it will ask for you password. So this one is the application that I'm going to be defined. Okay. So now I'm asking from a user, see out, please enter username. Okay, username. Okay, now the person will enter username, and this username will be entered over here into this. Okay, so how I can enter? Cin of inside you. Perfect. Now I captured the username, whatever the username the user enter. Okay, the client enter, or you can say the customer enter. Okay, so now first step is, what is the first step? That I have to match this string with this thing. Now we better understand the logic for the same. While, okay, the same logic, while this user, okay, this user of I double equal to u of I. Perfect. The same logic that we discussed yesterday in great detail. Okay, and u of I not equals to null character. Perfect. And I plus plus. Very good. Simple. Very simple. And initialization of I is equal to 0. So now I match this username. If this condition is true, now how you can understand, how you can check this condition is true? आप कैसे find out करोगे कि ये condition true है? If user of I, okay, user of I double equal to u of I. परफेक्ट. अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या है कि आपका यूजर सही है जो आपने डाला है. यूजर इज एक्यूरेट, जो आपने डाला है वो यूजर बिल्कुल सही है. ठीक है जी, परफेक्ट. अब मैं आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूं दोबारा 0 से, क्योंकि मुझे दोबारा से उसको इंक्रीमेंट करते जाना है. अब मैं क्या करूंगा? सी आउट ऑफ एंटर पासवर्ड. ठीक है जी, एंटर पासवर्ड. तो पासवर्ड मांगूंगा, तो पासवर्ड यूजर किस में डालेगा? सी इन ऑफ पी के अंदर. ठीक है जी, अब मैं पासवर्ड भी कैप्चर कर लिया. कब, किस सिनेरियो पे मैं पासवर्ड कैप्चर कर रहा हूं? जब आपका यूजर बिल्कुल मैच हो रहा है. ठीक है जी, तो उसके बाद मैंने उससे पासवर्ड मांगा. अब मुझे क्या मैच करना है? अब मुझे फिर से पासवर्ड मैच करना है. ठीक है जी, तो पासवर्ड मैच करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट. ओके, सेम कॉन्सेप्ट. द पासवर्ड ऑफ आई डबल इक्वल्स टू पी ऑफ आई एंड पी ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू दिस नल कैरेक्टर. ठीक है जी, अगर ये भी मैच हो जाता है, ठीक है ना, तो ये भी मैच हो जाता है, तो आई प्लस प्लस करता जा. ठीक है जी, अब उसके बाद इफ p ऑफ आई, ठीक है जी, p ऑफ आई डबल इक्वल्स टू पासवर्ड ऑफ आई. ठीक है जी, अगर तो ये चीज बिल्कुल ठीक डाली बंदे ने, ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ठीक है. अगर फिर से वो मतलब ट्रू डाल रहा है, if everything this loop executes successfully, okay, and this condition is true, then what's supposed to do? See out welcome to my product, welcome to my screen. ठीक है जी, मेरी स्क्रीन पे आपका वेलकम है, यानी कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर आपका वेलकम है. ठीक है जी, अगर ये चीज ट्रू नहीं होती, तो सिंपली दैट यू हैव टू गिव द मैसेज टू द यूजर, सिंपल मैसेज टू द यूजर else, okay, inside the else, see out of wrong password, your password is not correct. Okay, and अगर आपका पहला केस ही नहीं मैच होता, अगर यही केस नहीं मैच होता, तो इसका मतलब क्या है? उसका यूजर सही नहीं है. तो सी आउट ऑफ इनवैलिड यूजर. लो जी, ये पूरा आपका पूरी एप्लीकेशन का फ्रंट पेज डिजाइन हो गया है, जो आपको आपकी एप्लीकेशन को एंटर करने से पहले उसका यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा. अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड बिल्कुल सही है, तब ये आपको आगे प्रोसीड करवाएगा. तो ये वो एरिया है, वेलकम टू माय स्क्रीन, जहां पे आपको अपनी कोडिंग करनी है. ठीक है ना, लेकिन नॉर्मली ये सारा काम किसके थ्रू होता है? ये सारा काम फंक्शंस के थ्रू होता है.
ठीक है, यहां से फंक्शन बनेगा, वो फंक्शन हमें एक वैल्यू रिटर्न कर देगा और वैल्यू हम होल्ड कर लेंगे। अगर तो वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है तो हम फिर उस वैल्यू को प्रोसीड करेंगे आगे कि भैया एवरीथिंग इज फाइन, दैट मीन यूजर नेम एंड पासवर्ड इज एवरीथिंग इज एक्यूरेट, नाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर। तो अगर मैं वेब एप्लीकेशंस की बात करूं तो तीन चीजों में कन्वर्ट होती है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। ठीक है जी, मॉडल भी, एक के अंदर व्यू होता है, एक के अंदर कंट्रोलर होता है, एक के अंदर मॉडल होता है। क्या आपका मॉडल क्या है, आपका व्यू क्या है एप्लीकेशन का, और कंट्रोल कैसे हो रही है। ठीक है जी, तो ये टेक्निकल टेक्नैलिटीज हैं। अगर मैं एप्लीकेशन वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करूं, ठीक है, तो माय एप्लीकेशन वेबसाइट डेवलपमेंट इज फॉल अंडर दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज द मॉडल, व्यू, कंट्रोल। Okay, so I think this one is clear to everyone because the same logic, the logic is exactly same whatever we discussed yesterday. That logic is implemented 2 or 3 times, one time over here, okay, one time over here. If you want to save the line of code, what concept that you can use, the function concept that you can use. Later on we will describe the function into the great detail. Now you can understand better how exactly the things are happen. So the logic is same, the logic is same, but the thing is that I implemented that logic into the different ways. The first time I implemented to check the username, second time that code is implemented to check the password. Okay, so I use this code into 2 times into my entire scenario. If you want to save the code, if you want to save the typing time, if you want to save the space, if you want to save the storage, the function concept is there. Okay, now a little bit idea about you guys as well, what exactly the role of the function, because this line of code exactly same, you can say this line of code is almost exactly same, this is exactly same, this is exactly same. Okay, so I think to clear everyone, मैं इसका आपको प्रैक्टिकल भी इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ये बड़ा अच्छा कोड है और आपको नेट पे कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो प्लीज डू लेट मी नो बिफोर प्रोसीड फर्दर। मैं अभी आपको इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी दिखाता हूं तो आपको अच्छा लगेगा देख करके कि हाँ वाकई सही कोड काम कर रहा है। ओके, सो मैं अभी आपको इसका प्रैक्टिकल बना करके दिखाता हूं। ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं फिर क्योंकि हमने एरे के प्रोग्राम्स भी करने हैं अभी। आई थिंक टेस्ट के अंदर हमने कल टाइप किया था, यस। ओके, तो मैं कल वाला ही कोड उठा रहा हूं, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं फॉर द कन्वीनियंट, मैं इसको ले रहा हूं स्टैटिक यूजर। ठीक है जी, इसको ले रहा हूं स्टैटिक पासवर्ड। ठीक है, PWD। ठीक है जी, तो ये मेरी स्टैटिक यूजर नेम एंड पासवर्ड है। तो इसके अंदर जो मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो मैं डिफाइन कर रहा हूं नितिन। ठीक है जी, और इसके अंदर जो मैं डिफाइन कर रहा हूं वो मैं डिफाइन कर रहा हूं वर्मा। ठीक है, आई की वैल्यू मैंने 0 कर दी, तो यहाँ पे एंटर यूजर नेम। ठीक है जी, यूजर लिया और यूजर के अंदर डाल दिया। यहां तक तो सबको क्लियर है कि क्या हो रहा है सर। ठीक है जी, यूजर के अंदर डाल दिया, तो यहाँ पे मैं 2 और ले रहा हूं। ठीक है जी, जहां पे मैं यूजर की वैल्यू डलवाऊंगा, तो यहाँ पे आप लो यू। ठीक है, तो ये इसको कर देते हैं डिलीट। ओके, तो यहाँ पे जो मैं ले रहा हूं यू एंड पी। ठीक है जी, जो मैं यूजर से मांगूंगा, तो इसको कर दो रिमूव। ठीक है जी, इसको भी कर दो रिमूव। ठीक है, तो ये 2 हो गए मेरे जो मैं यूजर से मांगूंगा। ठीक है, ये मेरा आई वेरिएबल हो गया। ठीक है जी, ये मेरा आई वेरिएबल हो गया, ये मेरे स्टैटिक हो गए, जस्ट इमेजिनेट कि ये डेटाबेस से उठ करके आए हैं। ठीक है, ये मैंने यूजर से मांग लिया, एंटर यूजर नेम, परफेक्ट। अब क्वेश्चन क्या है, अब मैं ये कोड कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला सेम कोड, इफ, हाँ जी, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को चेक करना है क्या जो यूजर है, वट एवर द वैल्यू डेट इनसाइड माई स्टैटिक यूजर की वेरिएबल and this u, the u that you ask from the user. Okay, so user, or you can say u is okay. If this one is true, if this condition run exactly number of time, let's suppose the username is NITIN, that's mean if everything is fine, if you enter the correct username and password, this I value will become 1 2 3 4 5. Okay, it will become 5. If fifth character, whatever inside this and whatever you enter inside this, if last character same, it means everything is same. So I'm just focusing on the last character. Okay,
So already discussed in great detail yesterday. So if this one is true, okay, if this one is true, now what next to do? Now what next to do? So you are supposed to ask for the password. You are supposed to ask for the password. Please enter password. ठीक है जी. Now अब आपने क्या मांगना है? अब आप पासवर्ड मांग रहे हो. ठीक है जी. तो पासवर्ड किसके अंदर जाएगा? पासवर्ड अपने को पता है सी इन ऑफ पी के अंदर चला जाएगा. ठीक है. अगर मेरा यूजर नेम सही है देन इट इज आस्किंग फॉर द पासवर्ड. अब मुझे क्या चेक करना है? अब मुझे पासवर्ड चेक करना है. ठीक है जी. अब मुझे पासवर्ड चेक करना है. तो पासवर्ड चेक करने के लिए सेम लॉजिक देखो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ वेरिएबल्स के नाम चेंज कर रहा हूं. ठीक है. सिर्फ वेरिएबल्स के नाम चेंज कर रहा हूं और यहां पे जो आई की वैल्यू है वो इनिशियलाइज कर रहा हूं 0, क्योंकि मुझे 0 से ही चलाना है. ठीक है जी. तो यहां पे मैं PWD ले रहा हूं. ठीक है. और U की जगह वो P जिसमें बंदे ने एंटर किया है, तो यहां पे P. ठीक है जी. अगर ये भी ट्रू हो जाता है, अब देखो अगर ये भी ट्रू हो जाता है, ठीक है, अगर ये सारा कुछ सही होता है और उसके बाद PWD ऑफ P. ठीक है जी. अगर ये भी सही है देन व्हाट यू आर सपोज टू डू? सी आउट ऑफ वेलकम टू माई स्क्रीन. ठीक है जी. तो वेलकम टू माई वेबसाइट, और यू कैन से फॉर द बेटर कन्वीनियंट इंफॉर्मेशन वेलकम टू माई वेबसाइट. ठीक है. होम पेज. This one, let's suppose home page. Okay, home page. Okay, so if everything goes fine, then this message will be appear. Else, what message will be appear on the screen? See out of wrong password. Okay, wrong password. Now, if this condition is not true, I'm backing to the main condition. If this condition is not true, then what will be happen? What will be? Please unmute yours. Please mute yourself. Then what will be happen? Else see out of wrong user name. लो जी. कोड इज रेडी, बेस इज रेडी. किसी भी एप्लीकेशन का जो सबसे पहला कोड है वो यही है. ऑलमोस्ट यही है. बस सिर्फ डिपेंड करता है कि आप किस डेटाबेस से डाटा उठाते हो. तो थोड़ा सा कोड ऊपर और आ जाता है कनेक्शन का. ठीक है जी. कनेक्शन का लॉजिक ऑलमोस्ट सेम ही है. ठीक है. तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता है कि आप डेटाबेस से कैसे डाटा उठाते हो, कनेक्शन स्ट्रिंग कहां से आ रही है, एंड सो ऑन. ये लो जी, ये आपका पूरा कोड इज रेडी. अब मैं इसको सेव कर रहा हूं. ठीक है. अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं कि क्या ये सही चल रहा है. प्रोबेबली ये कोड बिल्कुल सही चलेगा. चलो अब इसको रन करते हैं. G++ test.cpp. hopefully no error, no syntactical error. No, good. There is no syntactical error. Now check for the logical error. Okay, so in the case number 1, मुझे यूजर नेम नहीं पता, मैंने गलती से गलत यूजर नेम डाल दिया. Now what is happening? Wrong यूजर नेम. वो मेरे से पासवर्ड मांगेगा ही नहीं. ऐसे ही होता है ना जीमेल के अंदर. अगर आपका यूजर नेम नहीं सही है तो वो आपसे कभी पासवर्ड मांगेगा ही नहीं. लाइक दिस. अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लो, जीमेल के अंदर मैं चला रहा हूं जीमेल. ठीक है. अब मैं यहां पे ये देखो, ये मैं गलत डाल रहा हूं. ठीक है जी, ये मैंने गलत डाल दिया. तो वो कह रहा है couldn't find your Google account, है ना. अगर मैं सही डाल दूं, ठीक है, अगर मैं सही डाल दूं, लो जी, अगर मैं सही डाल दूं तो नाउ इट इज आस्किंग फॉर पासवर्ड. द एंटायरली द कंसेप्ट इज सेम. तो ये कॉन्सेप्ट सारा सेम है. अगर आपका यूजर ही नहीं सही है तो इट विल नेवर आस्क यू फॉर द पासवर्ड. तो ये पासवर्ड नहीं मांग रहा. ठीक है. अब मैं दूसरा सिनेरियो चला के दिखाता हूं. अब मैंने यूजर सही डाल दिया, ये एंटर द वैलिड यूजर नेम. नाउ इट इज आस्किंग फॉर द पासवर्ड. अब अगर मैंने गलत पासवर्ड लगा दिया, ये लो जी, अब पहला केस है गलत पासवर्ड. तो मैंने गलत पासवर्ड लगा दिया तो इट विल सेइंग मी रॉन्ग पासवर्ड. तो ये मुझे बोल रहा है कि बेटा पासवर्ड गलत है. ठीक है. अब मैं बिल्कुल सही चलाता हूं. अब मैं चलाता हूं नितिन इज माय यूजर नेम. ओके. पासवर्ड इज माय वर्मा.
Okay, now the password and the user both are correct, both are matched. Then welcome to my website. This one is the home page. So the entire scenario has been done. Okay, this one is the concept for the username and password, and this very small line of code, almost 10 line of code, and your first home page is ready. ठीक है जी। अगर मैं इसका आपको एक्सटेंडेड वर्जन दिखाऊं तो वो पाइथन में है, लेकिन आप सी प्लस प्लस में भी कर सकते हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैं आपको इसका एक्सटेंडेड वर्जन दिखाता हूं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, और क्या क्या कर सकते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, तो अगर मैं आपको इसका एक्सटेंडेड वर्जन दिखाऊं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप और इसमें क्या कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो जी। Python for basics. Okay, Python for basics. My work, data structure, while loop. This one is username and password. Okay, so ये लो, ये कोड है, ये पाइथन में है, लेकिन हाँ सेम चीज आप कर सकते हो सी प्लस प्लस में भी। यस, अभी मैं आपको दिखाता हूं क्या हो रहा है, अभी देखते हैं। तो पाई स्पेस यूजर नेम, सो दैट आपको आइडिया होगा कि आप इसको और एक्सटेंड कैसे कर सकते हो। टू ser name password. Okay, so here okay, my static username is Nitin, the password is Verma, same. Okay, first time I enter wrong, ठीक है जी, I enter wrong username, now not a valid user, try again. Okay, this time I enter accurate, I think. Okay, this time again wrong because N is capital. Okay, this time I enter perfect username. So now I am entering wrong username one time because मैंने यहां पे वो लगाया हुआ है कि आपको पासवर्ड नहीं दिखेगा। ठीक है जी, पासवर्ड नहीं दिखेगा, आप जो भी टाइप करोगे वो नहीं दिखेगा। अब देखो, ध्यान से देखो, अब मैंने एक बार गलत पासवर्ड लगाया, ये मेरे से फिर से पूछ रहा है। मैंने 2 बार लगाया, ये मेरे से फिर पूछ रहा है। मैंने 3 बार लगाया, ये मेरे से फिर पूछ रहा है। नाउ नाउ अब देखो, अब ये मुझे को क्या कर रहा है, सिस्टम को हैंग कर रहा है। ठीक है ना, यू हैव डन 3 रॉन्ग अटेम्प्ट्स, वेट फॉर 1 मिनट। ओके, वेट फॉर 1 मिनट। सो अब ये मुझे सिस्टम के अंदर मेरे को हैंग कर रहा है, मेरे को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, ये भी इसका एक्सटेंडेड वर्जन नहीं है। मैं आपको अगर और दिखाऊं तो आपको क्लैरिटी और होगी। इसमें एक आधा कोई और भी पड़ा होगा, इसमें एक आधा कोई और भी पड़ा होगा जिसमें और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है। सो लेट मी पाइथन यूके एंड आयरलैंड बैच। ठीक है, इस बैच में मैंने करके दिखाया था। सो लेट मी चेक। तो इसमें एक और बहुत जबरदस्त है जिसमें आप आयरलैंड 2 बैच, शायद इसमें होगा। ये लो, अब इसमें मैंने करके दिखाया था, तो अब आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि हुआ क्या है। इसमें भी नहीं है, उसमें जरा ज्यादा बढ़िया तरीके से था। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप और आगे इसमें क्या कर सकते हो। पता नहीं वो कोड कहाँ चला गया। इफ while print wait for date time date, तो पता नहीं वो कहाँ चला गया जी कोड। आई थिंक दिस वन। नहीं, वो कोड मिल नहीं रहा, नहीं तो आप लोगों को पूरा आइडिया हो जाता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है।
ये पड़ा है, मैं आपको अभी चला के दिखाता हूं तो आपको आइडिया हो जाएगा, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये है क्या। बस 1 मिनट दो, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो आप लोग इसको एक्सटेंड करना, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपको इसमें और ज्यादा एक्सटेंड कर दोगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इंडेंटेशन का पाइथन में बड़ा चक्कर रहता है, अगर इंडेंटेशन खराब होगी तो कोड आपका नहीं चलता। तो लेट्स ट्राई टू रिकवर दिस कोड। इन द मीनवाइल किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। अगर आपका कोई क्वेश्चन और कोई डाउट आपको लग रहा है, आपको पूछना है कुछ भी, तो यू कैन आस्क मी। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, तो आपको काफी चीजें पता लग जाएंगी कि हाँ हम ये इसमें ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन को स्मार्ट बनाने के लिए जो इसमें हुआ है एग्जैक्टली सेम यू कैन डू, आप कर सकते हो। टाइम मॉड्यूल आप C++ में भी यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें टाइम मॉड्यूल यूज हुआ है। ठीक है, तो C++ के अंदर भी टाइम मॉड्यूल है, रैंडम मॉड्यूल है, रैंडम भी आप यूज कर सकते हो। आने वाले दिनों में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मेमोरी लीक का, जिसमें हम रैंडम कंसेप्ट को भी यूज करेंगे। ठीक है, ये लो जी। तो ये होपफुली अब इसमें कोई एरर नहीं आएगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि हो क्या रहा है इसमें। जो मेरा यूजर है 123 मेरा यूजर है और 321 मेरा पासवर्ड है। ठीक है, तो ये लो स्पेस up.py होपफुली ओके। एंटर यूजर नेम, तो पहले केस में मैंने गलत यूजर डाल दिया तो नॉट ए वैलिड यूजर। ठीक है, दूसरे केस में मैंने अपना यूजर बिल्कुल सही डाल दिया 123। अब मैं पासवर्ड डाल रहा हूं, मैंने एक गलत अटेम्प्ट कर दी, मैंने 2 गलत अटेम्प्ट कर दी, मैंने 3 गलत अटेम्प्ट कर दी। अब मुझे हैंग कर रहा है सिस्टम के अंदर। यही होता है ना रियल टाइम सिनेरियो में, जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन में मोबाइल के अंदर 4 से 5 बार गलत आप यूजर नेम गलत पासवर्ड डाल देते हो तो वो आपको इस तरह से हैंग कर देता है। कम बैक आफ्टर 46 सेकेंड, 45, 44, 43, 42, 41, 40 एंड सो ऑन। तो सेम थिंग दिस कैन बी एंटायरली कैन बी हैपन। तो ये जो कोड बना है ये पाइथन में बना है, लेकिन इससे भी मेरे पास एक एक्सटेंडेड वर्जन पड़ा है। उसमें क्या है कि आपके पास ओटीपी आता है, आपकी मेल के अंदर, आपकी मेल के अंदर ओटीपी आता है। ठीक है जी, उस ओटीपी से फिर अगर आप वो ओटीपी बिल्कुल सही डाल रहे हो तब जाकर के आपकी प्रोसेसिंग होती है, अदरवाइज आपकी प्रोसेसिंग नहीं होती। तो मेरे पास वो भी कोड है। ठीक है जी, मेरे पास वो भी कोड है जिसमें क्या होगा कि आप जब यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे, इमीडिएटली अगर आपने यूजर नेम और पासवर्ड बिल्कुल सही डाल दिया तो आपके पास ओटीपी आएगा। और ओटीपी कहां पे आएगा? आपकी मेल के अंदर। फिर अगर वो ओटीपी आपने सही डाला और वो ओटीपी 1 मिनट के लिए वैलिड होगा, अगर वो ओटीपी सही डाला देन यू विल प्रोसीड फर्दर। अब देखो, अब ये फिर से मांग रहा है एंटर योर पासवर्ड। ठीक है ना, क्योंकि 1 मिनट के बाद हम वापस आ गए उसी पोजीशन पे, हम 1 मिनट के बाद वापस आ चुके हैं। अब ये मेरे से फिर मांग रहा है ओके दिस टाइम आई एम एंटरिंग राइट पासवर्ड, और जो मेरा राइट पासवर्ड वो है 321। ठीक है जी, नाउ वेलकम टू माई साइट। ठीक है जी, नाउ वेलकम टू माई साइट। तो ये पूरा सिनेरियो है जी। आप इसको जितना स्मार्ट बनाना चाहते हो वो अब आपके ऊपर है। मैंने आपको बेस दे दिया, ये आपको थोड़ा सा एडवांस वर्जन दिखा दिया। अगर आप थोड़ा और एडवांस में जाना चाहते हैं तो आपके पास है वो, आप ओटीपी मंगवा लो। यस, आप मंगवा सकते हो, आप मंगवा सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, शायद वो भी कोड पड़ा होगा। पाइथन फॉर बेसिक्स, माई वर्क, आयरलैंड, यूके एंड आयरलैंड बैच। इसमें शायद मैंने ये लो जी, ये ओटीपी जनरेटर का पड़ा है क्योंकि इस बैच में मैंने करके दिखाया था। ये लो, ये आपका ओटीपी का है जी, ये ओटीपी आएगा आपका। ठीक है जी, ओटीपी आएगा और इस मेल के अंदर जाएगा। ठीक है जी, इस मेल के अंदर जाएगा। अब वो ओटीपी अगर 1 मिनट के लिए, ये लॉजिक लगा हुआ, अगर वो ओटीपी 1 मिनट के लिए आपने डाल दिया
तो इट विल से ओके सक्सेसफुली लॉगिन, अदरवाइज इट विल से अनसक्सेसफुली लॉगिन। ठीक है, दैट्स मीन ओटीपी इज नॉट राइट। सो ये पूरा कोड है जी, ये पूरा कोड है, लेकिन ये पाइथन में है। सेम थिंग दैट यू कैन परफॉर्म इनटू द C++। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ईमेल कैसे हम C++ के थ्रू भेज सकते हैं और कैसे रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कोड है, अगर किसी को चाहिए होगा तो पिंग मी, आई विल शेयर। ओके, सो आई थिंक नाउ द पिक्चर इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट एग्जैक्टली हैपन, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, कैसे ये चलती हैं चीजें, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब अगर आप कल को अपनी C++ में कोई एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो तो यहां से आप ये कोड को हेल्प ले सकते हो। ठीक है, यहां से इस कोड की हेल्प लेके अपनी एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड कर सकते हो। ओके, so anyone having any doubt please do let me know before proceed further। तो ये एरे के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि स्ट्रिंग को कैसे डील करते हैं, लिटिल बिट आइडिया, बट आने वाले दिनों में हम और करेंगे, स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स हम बहुत बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स से ही आपकी ज्यादा चीजों की क्लैरिटी होगी। ठीक है, क्योंकि अब देखो ये सारा काम स्ट्रिंग से होता है, लेकिन जब हम डेटाबेस हैंडल करते हैं, ठीक है, उस टाइम भी डेटा स्ट्रिंग में आता है। ठीक है, जब हम फाइल हैंडलिंग करते हैं उस टाइम भी डेटा स्ट्रिंग में आता है। जितना स्ट्रिंग के साथ खेलोगे उतना अपने आप को आप अच्छा फील करोगे कि हाँ मुझे कोडिंग आ रही है। ठीक है जी, ओके। सो इन द मीनवाइल एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो बिफोर प्रोसीड फर्दर। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से एक बार पूछ सकते हो। किसी का भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग C++ और एनी अनदर टॉपिक? हाँ जी, किसी का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी, नो डाउट, सो शुड बी प्रोसीड फर्दर। ओके, गुड। तो अगला जो आपका जो मैंने आपको असाइनमेंट्स दी थी, तो आप में से किसी ने भी, नो वन सबमिटेड डेटा असाइनमेंट्स। ठीक है जी, तो सिर्फ एक बंदे ने रिप्लाई किया था कि सर मैंने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। सो कौन था वो पर्सन प्लीज, जिन्होंने मुझे बताया था कि सर मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं एरे वाले? हाँ जी, सर अंकु मंगा। अंकु मंगा, ठीक है, गुड है जी। कौन कौन से किए हैं आपने? सर वैल्यू एडिड इंडेक्स, फाइंड इवन वैल्यू इन एरे एंड बिगेस्ट एलिमेंट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट। गुड गुड। और बाकियों का क्या सीन है जी? बाकियों का क्या सीन है? बाकियों ने किए हैं कि नहीं किए? हाँ जी, बाकियों का क्या सीन है? बाकियों ने किए नहीं किए? नहीं किए तो यार करो यार, प्लीज कोशिश करो एटलीस्ट। अब गियर बदलने वाला हूं मैं कुछ दिनों के अंदर। ठीक है, अब आपका थोड़ा सा गियर बदला जा चुका है, लेकिन आपको पता नहीं है, आपके एरे के प्रोग्राम ने आपका गियर चेंज कर दिया। तो पहले आप पहले गियर में थे, अब आप दूसरे गियर में आ गए हो। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो अभी तक जो हमने देख लिया है, सर हमने इफ देख लिया है अच्छे से, बहुत प्रोग्राम्स हमने बना लिए। फोर के सर हमने काफी प्रोग्राम्स बना लिए। नेस्टेड फोर के सर हमने काफी बना लिए। वाइल के सर हमने बहुत बना लिए। ठीक है, एरे के सर हमने थोड़े से किए हैं, अभी थोड़े से हमारे पेंडिंग है। ठीक है, तो इतने प्रोग्राम्स अगर आप कर चुके हो तो ये लगा के चलो कि हम एवरेज 40 से 50 के बीच में प्रोग्राम कर लेंगे एरे को इंक्लूड करके। तो 40-50 प्रोग्राम ये वही है जो इंटरव्यू में मैक्सिमम रेपिटेटेड प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, मैंने कुछ आपको एडवांस भी दिखाया, जैसे अभी आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिखाया था, आप ये भी डाल सकते हो अपने कोड के उसके अंदर। कल को इंटरव्यू में पूछे कि आपने क्या यूज करके क्या बनाया था, तो यू कैन से दिस थिंग्स। तो ये अच्छा इंपैक्ट छोड़ता है, क्योंकि अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट तो इंटरव्यू क्रैक करना है ना। अपने को क्या लेना देना, ये एरे क्या है, वाइल क्या है, ये तो अभी हम तभी सीख रहे हैं ना, क्योंकि हमें फाइनल इंटरव्यू क्रैक करना है। लेकिन अगर ये इंटरव्यू नहीं क्रैक करना होता तो हम कभी सीखते ये कभी ना सीखते। ठीक है, इंडस्ट्री में डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको 50% भी कोडिंग आती है ना, तो आप इंडस्ट्री में बहुत अच्छे डेवलपर बन सकते हो, क्योंकि बाकी का चीजें तो कॉपी पेस्ट ही है नेट से। ठीक है, सो डोंट वरी। चलो जी, अब शुरुआत करते हैं अपने एरे के प्रोग्राम्स के, क्योंकि ये जो एरे के प्रोग्राम है डेटा स्ट्रक्चर के ही प्रोग्राम है। तो मैं सबसे पहला प्रोग्राम ले रहा हूं, सबसे आसान वाला, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये मैं प्रोग्राम ले रहा हूं जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रॉम एन एरे। ये बड़ा आसान सा कोड है। ठीक है जी, बहुत आसान कोड है, बड़ा इजी कोड है।
तो लास्ट टाइम हमने जो एरे का देखा था, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एरे, वो कोड हमने कल देखा था, ठीक है। अब देखते हैं जी, क्योंकि एरेज में काफी बंदों को दिक्कत आती है, वो उनको हैंडल नहीं कर पाते। तो कल जो हमने देखा था वो 1D एरे है। अब मैं जो फील कर रहा हूं कि अगर आपने मेरा वो लेक्चर पूरा ध्यान से सुना था तो आप जिंदगी भर 1D 2D और ND एरे में कभी भी डिफरेंस नहीं भूलोगे, अगर आपने वो लेक्चर ध्यान से सुना था। क्योंकि वो एक ऐसी एग्जांपल है, मुझे भी स्टार्टिंग में जब मैं एरेज के साथ खेल रहा था, ठीक है ना, तो मुझे भी स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत आती थी कि 1D क्या है, 2D क्या है, ND क्या है। तो ये एग्जांपल मुझे मेरे गुरु ने बताई थी, जो मैंने आपको शेयर की है, ठीक है जी। मेरे जो गुरु हैं वो साउथ से हैं, मैंने उनको कभी देखा नहीं है, मैं भी उनसे ऑनलाइन पढ़ा था, 2015 में पढ़ा था उनसे, उन्होंने ही मुझे तैयार कर किया था, साउथ के थे, ठीक है जी, बहुत अच्छे से उन्होंने तैयार किया। इवन मैंने उनको कभी देखा नहीं है, सिर्फ उनकी वॉइस सुनी है। अगर उनकी वॉइस मेरे कानों में आती है तो मैं फट से पहचान लेता हूँ कि हाँ उन्होंने किया है। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर मुझे 1D 2D और ND एरे में डिफरेंस नहीं समझ आया। तो फिर उन्होंने प्लीज म्यूट योरसेल्फ, फिर उन्होंने मुझे ये एग्जांपल दिया था और मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूला कि ये 1D एरे क्या है, 2D एरे क्या है, 3D एरे क्या है और ND एरे क्या है, ठीक है। और आई होप अगर आपने वो सुना होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप वो कभी नहीं भूल सकते। ओके, अगर नहीं सुना तो आई थिंक रिकॉर्डिंग अवेलेबल है 15-20 दिनों के लिए, तो आप एक बार सुन लेना तो आपको वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कभी जिंदगी में डाउट नहीं आएगा। क्योंकि मशीन लर्निंग में अगर आपको बढ़ना है ना आगे, अगर आपका टारगेट मशीन लर्निंग है तो आपको ये आना चाहिए भाई, क्योंकि मशीन लर्निंग में सारा डेटा है वो 1D से तो बहुत कम आता है, इवन आता ही नहीं है। तो 2D और ND से आता है मैक्सिमम डेटा, ठीक है जी। अब 2D डेटा को हैंडल कैसे करना है, नेस्टेड फॉर लूप से, जो हम आज सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी तो सर अभी स्टिल असाइनमेंट है 1D एरे की, तो आज हम वो करते हैं, ठीक है। फिर जो टाइम बचेगा उसमें मैं 2D करा करके आपको तो उसकी असाइनमेंट भी देने वाला हूं। चलो जी, अब सबसे पहला जो प्रोग्राम है मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या है कि एरे में से अपने को फाइंड आउट करना है कि कौन मिनिमम है कौन मैक्सिमम है, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम उठाता हूं, अब फाइंड कैसे करोगे, क्वेश्चन तो यही है ना। अब यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा है, दैट यू आर गेटिंग ए कलेक्शन ऑफ डेटा 5 6 7 9 12 50। अब आपने जब इसको देख लिया ध्यान से, अगर मैं आपको ये वैल्यू दे रहा हूं, आप इमीडिएटली विद इन सेकंड कह रहे हो कि सर 50 इज द लार्जेस्ट नंबर, द मैक्सिमम नंबर इज 50। बिल्कुल ठीक है जी, कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है ना। आपने क्यों पहचान लिया फट से, क्योंकि ये बहुत कम वैल्यूज थी, ये बहुत कम वैल्यूज थी। तो आपने एक बार देखा, अपनी निगाह से निकाला और आपने एकदम से बोल दिया कि सर 50 इज द मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर यही वैल्यू 1000 वैल्यूज होती, फिर आप क्या करते, फिर आप क्या करते, फिर सर हम क्या करते, हम कंपैरिजन करते। यस यस, सेम थिंग, हम यहां पे भी कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन सर हम कंपैरिजन कैसे करते, क्वेश्चन तो यही है सबसे बड़ा, ठीक है जी। अगर मैं आपको एक कंटेनर दे रहा हूं, इफ आई एम गिविंग यू वन कंटेनर दैट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज, हाउ डू यू कंपैरिजन ऑल दीज वैल्यूज एंड फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसको फाइंड करने के लिए अब आप क्या करोगे, सर मैंने क्या किया, मैंने एक एज्यूम कर ली मैक्सिमम वैल्यू 0 है, जो मेरे पास है मैं सबसे बड़ी वैल्यू 0 लेके बैठा हूं, ठीक है जी, सबसे बड़ी वैल्यू 0 लेके बैठा हूं। अब मुझे क्या करना है, इसको आइट्रेट करना है, इसको आइट्रेट करना है, ठीक है ना। जब मैं इसको आइट्रेट कर रहा हूं तो मेरे पास 0 इंडेक्स सबसे पहले आया, ठीक है जी, मेरे पास सबसे वैल्यू 5 आई। अब जब मेरे पास सबसे वैल्यू पहली 5 आई तो मैं इसको कंपैरिजन कर रहा हूं 0 और 5 का, क्या 0 बड़ा है कि 5 बड़ा है, सर जी 5 बड़ा है, ठीक है जी। अब मैं इस कंटेनर की, ठीक है, जो मेरे पास मैक्सिमम कंटेनर था और मेरे पास एक ये कंटेनर है, तो कहता जो मैक्सिमम कंटेनर था उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में 0 रख लिया कि बेटा तू 0 लेके बैठा है, ठीक है जी, कि तेरे अंदर 0 वैल्यू है, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि तू सबसे बड़ी वैल्यू है। अब मैं तेरा कंपैरिजन करवाने जा रहा हूं इनके साथ। अब मेरे पास जो सबसे पहली वैल्यू आई है वो 5 आई है, अब मैं 0 और 5 का कंपैरिजन करने वाला हूं, तो कौन सी बड़ी है, 0 बड़ी है कि 5 बड़ी है, सर जी 5 बड़ी है, बिल्कुल ठीक है। अगर 5 बड़ी है तो कहता है इसके अंदर 5 डाल दे, यानी कि जो पहले मैक्सिमम कंटेनर 0 लेके बैठा था ना,
अब वो 5 लेके बैठा है। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, चलो इसको छोटी कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, अगली मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है। अब मैं इस 6 को इस 5 के साथ कंपैरिजन करने जा रहा हूं कि कौन बड़ा है, 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है। सर जी 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, बिल्कुल ठीक है सर। तो मैक्सिमम कंटेनर में हमें क्या डालना है, मैक्सिमम कंटेनर में हमें 6 डाल देना है। अब उसके बाद अगली वैल्यू आ रही है मेरे पास 4। अब कौन सी बड़ी है, 4 बड़ी है कि 6 बड़ी है? सर जी 6 बड़ी है। तो ठीक है भाई, फिर कुछ मत करो, स्किप कर दो, है ना, स्किप कर दो, कुछ मत करो। ठीक है सर, कुछ नहीं करते। अब उसके बाद मैं 9 को उठा रहा हूं। अब बड़ी कौन है, 6 बड़ा है कि 9 बड़ा है? विच वन इज ग्रेटर? नाउ if 6 is greater, what you will do? Nothing, है ना। In the previous case that the 6 value is greater. If 6 is smaller, then what you will do? You will interchange that value. That means you are replacing this 6 with 9. If the container value is less with comparing value, then what you are supposed to do, you are supposed to change, or you are supposed to interchange the container value with that value. That's it. अब अगर मैं if की बात कर रहा हूं तो कोड के अंदर if भी लगने वाला है। ठीक है जी। अब उसके बाद अगली वैल्यू उठा रहा हूं, अगली वैल्यू उठा रहा हूं तो मेरे पास अगली क्या आ रही है, 12। 9 बड़ा है या 12 बड़ा है? सर जी ये तो क्लियर ही है, 12 बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। तो मैक्सिमम में कितना डाल दे, अब मैक्सिमम में 12 डाल दे। सर फिर नेक्स्ट वैल्यू उठाई 50, विच वन इज ग्रेटर, 50 और 12? सर जी 50 बड़ा है, ऑब्वियस है। तो कहता चेंज कर दे। अच्छा अगली कोई वैल्यू है? सर अगली कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब मैक्सिमम कंटेनर में कितना आ गया? सर जी मैक्सिमम में आ गया 50। तो किसको प्रिंट करना है, मैक्सिमम को। तो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या आएगी, 50। द मैक्सिमम वैल्यू इज 50। दैट्स इट, ये कोड है। दिस वन इज द लॉजिक, मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस कोड। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको टेक्निकली अचीव करना है तो क्या है, कहता सर यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से आए। तो अगर यहां से यहां जा रहे हैं ना बेटा, तो अपने को फॉर लूप तो लगानी ही है, जो आइटरेट करेगी, 1 बाय 1 वैल्यू आपको हैंड ओवर करेगी। ठीक है जी। अब उसके बाद इस फॉर लूप के अंदर आपको कंडीशन लगानी है, विच वन इज ग्रेटर, द मैक्सिमम वैल्यू इज ग्रेटर और दिस वन इज ग्रेटर। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन चेंज द मैक्सिमम कंटेनर, यानी कि मैक्सिमम वेरिएबल की वैल्यू को आपको चेंज करना है, यानी कि ग्रेटर देन साइन आ गया ना, वही ग्रेटर देन साइन। फाइंड द ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर्स, द सेम लॉजिक। Find the greater number between two numbers, exactly the same logic that we implemented in for very first day. The same logic is implementing, but this logic is implementing how many times? 1 2 3 4 5 6 times. To whom I am comparing? With the maximum variable I am comparing all these values. That's mean I am getting 5 values and I am implementing this 5 this operator 5 times, because I am getting value 1 by 1. I am getting value 1 by 1, 1 by 1. How I can get the value 1 by 1? With the help of the for loop. The for loop will provide you the array values starting from the 0 index to the end of the data. And what logic that you are supposed to perform? You are supposed to perform the logic of the if. That's it. If this condition is true, then you are supposed to interchange. If this condition is failed, then nothing to do. That's it. That's it. Very small logic. Very small logic. So I hope now you clear with the mathematics behind it. So if you have any doubt, mathematics behind it, please do let me know before proceed further. हाँ जी प्लीज, मैथमेटिक्स मैंने आपको बता दिया, फॉर लूप। हाँ जी प्लीज प्लीज बोलिए, कौन बोलने वाला था? हाँ जी कौन बोलने वाला था, प्लीज बोलिए। अच्छा चलो, मैथमेटिक्स मैंने आपको बता दिया कि दिस वन इज द लॉजिक दैट यू आर सपोज्ड टू परफॉर्म, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द एंटायर डेटा। तो यही है नॉर्मल लाइफ में हम यही करते हैं भाई, वही चीजें हम प्रोग्रामिंगली इंप्लीमेंट करते हैं। मैं आपको जितने भी प्रोग्राम करवाए हैं सब नॉर्मल लाइफ के साथ कोरिलेट करके करवाए हैं।
जब बंदा इन चीजों को नॉर्मल लाइफ के साथ रिलेट करता है ना, तो जिंदगी में कभी मार नहीं खाता। कोई भी प्रॉब्लम हो आप फट से उसको कैप्चर कर लेते हो। एंड आई कैन गारंटी यू, जब मैं आपको फंक्शन करवाऊंगा, आप जिंदगी में कभी फंक्शन नहीं भूलोगे। ये मैं आपको बेट लगा के बोल सकता हूं। इवन मैं नॉन टेक्निकल बंदे को भी फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं कि फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, और आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और मेरी खुद की बनाई हुई एग्जांपल है, और प्रोबेबली ये एग्जांपल पब्लिश भी हो जाती, ठीक है जी, लेकिन हो नहीं पाई। चलो, तो हमेशा कोरिलेट किया करो कोई भी प्रॉब्लम को रियल टाइम में। ये मैंने आपको रियल टाइम के साथ ही इंटरलेट करके बता दिया। और मैं शुरू से बोल रहा हूं कि हर प्रॉब्लम अपने साथ मैथमेटिक्स लेके आती है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो पतला हो, चाहे वो मोटा हो, लेकिन मैथमेटिक्स हर प्रॉब्लम अपने साथ लेके आती है। तो ट्राई टू फाइंड आउट द मैथमेटिक्स बिहाइंड एवरी प्रॉब्लम। एवरी प्रॉब्लम अगर आपको उसका मैथमेटिक्स पता लग गया ना, तो आप उसको इजीली, अब देखो ये भी तो मैथमेटिक्स ही है, ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है, लेकिन दिस टाइम आपके पास मल्टीपल नंबर्स हैं और आप एक नंबर को मैक्सिमम कंसीडर करके जा रहे हो। अब जिंदगी भर आप ये लॉजिक नहीं भूलोगे, ठीक है जी। ओके, सो गुड। इफ यू हैव एनी, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, दैट्स ग्रेट। अगर आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी। एंड योर असाइनमेंट राइट नाउ, you are supposed to write the code for the same. The time is 11:09. I will come back to you 11:12, not 12, 11:11, ठीक है जी। तो मैं आपके पास 11:11 पे वापस आ रहा हूँ। 11:09 मेरे पास हुए, 11:10 हो चुके हैं, तो 11:11 पे मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। और यू आर सपोज टू थिंक अबाउट इट। 2 मिनट है आपके पास, यू आर सपोज टू थिंक अबाउट द लॉजिक। अब मैंने लॉजिक मैथमेटिकली बता दिया, बट यू आर सपोज टू फिट दैट लॉजिक इनटू द C++। थैंक यू, ठीक है जी। तो आपके पास 2 मिनट है, 10 है, तो 11 पे मैं आपके पास आऊंगा, 12 पे आऊंगा। 11 पे नहीं, 11 खत्म होने के बाद। इन द मीन वाइल अगर किसी को कोई डाउट है तो आप एक बार पूछ लीजिएगा। हाँ जी, हो गया? प्लीज रेज योर हैंड जिनका हो गया, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी प्लीज। अच्छा, व्हाट्सएप पे किया है। हाँ जी, बाकियों का? हाँ जी प्लीज। व्हाट अबाउट अदर्स?
ऋषिका जी ये शायद मेरे को लगता है कि मिनिमम वैल्यू दे देगा, ये मैक्सिमम नहीं देगा, ये मिनिमम दे देगा। नहीं ठीक देगा, ठीक देगा, ठीक देगा जी, ठीक दे देगा। हाँ जी, व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ जी, बाकियों का क्या सीन है? हाँ जी भाई, हाँ जी मैं रैंडमली पूछ रहा हूँ, प्लीज डोंट लीव द मीटिंग, तो काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करना है, तो मैं रैंडमली किसी से भी पूछ रहा हूँ, 2 या 3 बंदों से पूछूंगा। व्हाट इज द अप्रोच? ओके, किरणजीत कौर, हाँ जी प्लीज, किरणजीत कौर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड ट्राई टू गिव द आंसर फॉर द सेम। हाँ जी किरणजीत जी, चलो। हाँ जी किरणजीत जी, नो। ओके पवन कुमार, हाँ जी पवन जी। पवन, कमाल है यार। सर टाइपिंग बहुत स्लो है सर मेरी। नहीं टाइपिंग नहीं, मेरे को लॉजिक बताओ यार, छोड़ो। सर लॉजिक तो आपने अभी सारा एक्सप्लेन कर ही दिया कि हम एक एक नहीं नंबर वो को आप बोल ट्रैवर्स के बता दो करेंगे। ना कि कैसे होगा, कि हाँ आप जी फॉर सर। लूप को कैसे यूज करोगे, एरे को कैसे यूज करोगे। एक काम किया करो, कॉपी पेन पे बना करके चैट बॉक्स में शेयर कर दिया करो, तो मैं चेक कर लूंगा, अगर आपने किया है तो फिर मेरे को पता लगे, यहाँ पे आपने शेयर कर दिया तो मेरे को, मैं वो लॉजिक देख लूंगा, ठीक है। हाँ तो जी हाँ कॉपी जी। पेन पे बनाया करो रेदर देन टू टाइप, तो कॉपी पेन पे, ठीक है। ये एक्सक्यूज मत दे देना इंटरव्यू में मेरी टाइपिंग स्पीड बड़ी स्लो है। अच्छा एक बात का और याद रखना, कभी भी ये काम मत करना, अभी इन्होंने जैसे टाइपिंग स्पीड बोला है तो मेरे माइंड में इमीडिएटली एक नहीं सर मुझे लगा कोड करना है इसीलिए बोल रहा नहीं नहीं, कोड आप कॉपी पेन पे कर लिया करो, था। हाँ ठीक जी है। हाँ तो जी। अभी मैं टाइपिंग स्पीड के बारे में ही बता रहा हूँ। एक तो इंटरव्यू में कभी नहीं बोलना मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत स्लो है, अगर ये बोलोगे तो वो समझ आएगा कि आपने जिंदगी में कोड नहीं किया हुआ, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपको वो कोड लिखने के लिए दे देना, तो लड़कियों की ये नॉर्मल हैबिट होती है, वो एक हाथ से टाइप करती हैं। ये 90% लड़कियों में दिक्कत है। मैं हमेशा उस लड़की, मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया, लड़के बहुत कम करते हैं, हाँ कुछ लड़के होते हैं जो एक हाथ से ही टाइप करते हैं, लेकिन लड़कियों में ज्यादा दिक्कत है कि वो एक हाथ से टाइप करती हैं। तो मैंने पता नहीं कितनी लड़कियों को टोका है, जब वो कोड टाइप करती हैं तो एक हाथ से टाइप करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये चीज का हमेशा माइंड में ध्यान रखना, अगर मेरे जैसा बंदा बैठा होगा तो वो एकदम से आपको रिजेक्ट कर देगा, चाहे आपने कोड किया भी है। जब आप एक हाथ से टाइप कर रहे हो ना, इसका मतलब ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ठीक है जी, और ना आप कोडिंग करना चाहते हो, ठीक है जी, और ना आपके अंदर कोई जज्बा है कि आप कोडिंग के लिए इंटरेस्टेड हो। तो ये यहीं से नेगेटिविटी शो कर देता है, ठीक है। तो ये अपनी हैबिट बना लो, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन ये अपनी हैबिट बना लो कि आपको जब भी कोड करना है तो 2 हाथों से करना है। एक हाथ से अगर आपने इंटरव्यू में करना चालू कर दिया तो वो वहीं से ऑब्जर्व कर लेगा कि इसके अंदर वो जज्बा नहीं है, कि इसको अपने को सिलेक्ट करना ही नहीं है, ये काम करेगी नहीं, चाहे आप कोड बिल्कुल सही बना के दे दो उसको। तो हमेशा याद हैबिट पालो। अच्छा बी ऑनेस्ट, अच्छा बी ऑनेस्ट, कौन एक हाथ से टाइप करता है? जस्ट रेज योर हैंड, बी ऑनेस्ट, कि जो एक हाथ से कोड टाइप करता है। देखो वीरू आगे ना, एक लड़की मैक्सिमम लड़के आएंगी। ओके बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। और कोई जो एक हाथ से कोड टाइप करता है? बस एक ही है ऑनेस्ट बंदा यहाँ पे। चलो ठीक है, बाकियों को भी ये ध्यान में रखना है कि ये देखो वन मोर पर्सन, ये भी है, ठीक है। तो एक हाथ से टाइप नहीं करना अपने को कभी भी, ये चीज का हमेशा ध्यान रखो। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमें नहीं पता लगता, हम आके बोलते हैं सर जी इंटरव्यू बहुत बढ़िया हुई जी, हमने तो झंडे गाड़ दिए, लेकिन बाद में पता लगा कि झंडे गड़े नहीं थे, वो उखड़े थे। ठीक है, तो हमें नहीं पता होता, लेकिन सामने वाले को पता होता है कि आपने ये गड़बड़ कर दी, वो ऑब्जर्व कर लेता है। कि हम कहते हैं ना कि सर पेपर तो बहुत बढ़िया हुआ था लेकिन रिजल्ट नहीं अच्छा आया, हम तो अपनी तरफ से अच्छा करके आए थे लेकिन रिजल्ट नहीं अच्छा। उसका कारण ये है कि आपने अच्छा किया था लेकिन सामने वाले को वो अच्छा नहीं लगा। चलो तो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट इट। चलो मैं आपको इसका लॉजिक बता रहा हूं, मैं इसको इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, ये इंप्लीमेंट आप ही करोगे, लेकिन मैं उसका कोड लिख रहा हूं, तो यू आर सपोज टू इंप्लीमेंट दैट कोड। छोटा सा कोड है, बिल्कुल आसान सा कोड है। तो ये मैं एरे ले रहा हूं, ठीक है, लेट सपोज 5 एलिमेंट उसमें ले लिए, तो 5 6 3 2 10, ठीक है जी। तो ये मेरा एरे है। अब इस एरे में से मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, हर एरे की वैल्यू को आइटरेट करना है। आइटरेट करना मतलब हर वैल्यू की एरे को वैल्यू, हर एरे की वैल्यू को पकड़ना है, ठीक है। तो मैं अपने अज्यूम करके चल रहा हूं कि भैया जो मैक्सिमम है वो 0 है, कि मेरे पास जो सबसे बड़ा है वो 0 है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम 10 ले लोगे तो 10 के अगर वैल्यू कोई 10 के नीचे वाली होगी तो आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमेशा जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो आपको 0 से ही स्टार्ट करना है, कि भैया मैं जो मैक्सिमम कंज्यूम करके चल रहा हूँ, अज्यूम करके चल रहा हूँ, वो 0 अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है।
ओके अब मैं उसको आइटरेट करना है फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, ठीक है जी 5, और यू कैन से अगर 6 वैल्यूज हैं तो लेस देन इक्वल टू 5 कर दो, ठीक है, नहीं तो 1 से चला दो, चॉइस इज अगेन योर। चलो ठीक, अब ये चल रही है वैल्यू। आप सबसे पहले क्या पकड़ोगे, सबसे पहले आपको एरे की ये 0 इंडेक्स वाली पकड़नी है। तो आई की वैल्यू कितनी है, 0 है। चलो ठीक है जी, इफ ये कंडीशन लग रही है, इफ ए ऑफ आई ग्रेटर देन 0, ठीक है जी, नॉट ग्रेटर देन 0, सॉरी 0 मेरे माइंड में आ गया, ग्रेटर देन दिस मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम में स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, ठीक है जी, ग्रेटर देन दिस मैक्सिमम, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ आई, दैट्स इट। लो जी कोड बन चुका है, और एंड में जाकर के सी आउट दैट यू आर सपोज टू प्रिंट मैक्स। लो जी ये कोड था, बिल्कुल छोटा सा कोड, कुछ भी नहीं था इसमें। देखो ए ऑफ आई कितना आया, 5 आया, मैक्सिमम कितना था, मैक्सिमम 0, कहता कंडीशन ट्रू होगी, बिल्कुल होगी सर, मैक्सिमम की वैल्यू जो डाल दो अब 5 डाल दो, ठीक है। अगले केस में कितना आया, 6 आया, मैक्सिमम में कितना था, अब 6 था, कंडीशन ट्रू हुई, नहीं सॉरी इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, ठीक है जी, कंडीशन ट्रू हुई, हाँ जी सर होगी, 6 डाल दो। चलो जी अगले केस में आई में कितना आया, 3, मैक्स में कितना आया, 6, ठीक है जी, कंडीशन ट्रू हुई, नहीं हुई तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। 2 आई, कंडीशन ट्रू हुई, नहीं। अगले केस में 10 ग्रेटर देन 6, हाँ जी सर कंडीशन ट्रू होगी, तो मैक्सिमम कितना चला गया, मैक्सिमम में 10 चला गया, यानी कि ओवरराइट हमने कर दिया। तो सी आउट ऑफ मैक्सिमम कर रहे हो तो आउटपुट क्या आ रही है, 10 आ रही है। मिनिमम फाइंड आउट करना है, हाँ जी कोई बता सकता है मिनिमम कैसे फाइंड आउट होगा, हाँ जी मिनिमम कैसे फाइंड आउट होगा, हाँ जी मिनिमम कैसे फाइंड आउट होगा, इस वैल्यू को चेंज कर दो, ठीक है, और चेंज कर दो, लेकिन अब मिनिमम में क्या लेके जाना है आपको, मिनिमम में क्या लेके जाना है, थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए ए ऑफ 0, तो मैं सबसे छोटी वैल्यू ये मान के चल रहा हूं, बस सबसे छोटी वैल्यू मान के मैं ये चल रहा हूं। तो मैंने, क्योंकि आप देखो ना इसमें हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो मैं सबसे छोटी वैल्यू ये मान के चल रहा हूं। तो आपको ए ऑफ 0 को आप उठा लो कि भैया ये सबसे मिनिमम है, अगर इससे कोई छोटा आता है तो कहता चेंज करता जा, अगर इससे कोई छोटा आता है तो चेंज करता जा, बात खत्म, साइन चेंज है, दैट्स इट, ठीक है ना, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने के लिए। मैक्सिमम के केस में भी आप ऐसा ही कर सकते हो, ठीक है ना, 0 वैल्यू उठा लो, अगर उससे कोई बड़ी आती है तो चेंज करता जा, तो ये एक दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन समझने के लिए, अगर मुझे पता ही नहीं है, अगर मैं इसकी वैल्यू को उठाना ही नहीं चाहता, तो मैं 0 अज्यूम करके चल सकता हूं, नहीं तो मैं क्या अज्यूम करके चल सकता हूं कि मैंने सबसे पहली वैल्यू उठाई, इसको मैक्सिमम कंसीडर कर दी, अब कोई इससे बड़ी आती है तो कहता चेंज करता जा। तो एक तो हो गया ये तरीका, ठीक है, एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका आप 0 के साथ चल सकते हो, चॉइस इज अगेन योर। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, एक केस में कि आप कंज्यूम करके अज्यूम करके चल रहे हो कि 0 सबसे बड़ा है, ठीक है, अब जितने 0 से जो बड़ा आता जाएगा मैं मैक्सिमम की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा, ठीक है। दूसरे केस में मैं क्या लेके चल रहा हूं, दूसरे केस में मैं ये लेके चल रहा हूं कि भैया ये सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा है, तो मैक्सिमम के अंदर मैंने ए ऑफ 0 एलोकेट कर दिया कि भैया तू सबसे बड़ा है, लेकिन जो तेरे से बड़ा आएगा तब मैं वैल्यू चेंज करता जाऊंगा। तो ये दूसरा तरीका है, ठीक है, चॉइस इज अगेन योर। बस मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए आपको साइन चेंज करना है, बस ये साइन चेंज कर दो, ठीक है। लेकिन मिनिमम के केस में आपको सबसे ये वैल्यू को उठा के चलना है, नहीं तो क्या होगा, अगर आप 0 के साथ ही चलोगे तो क्या होगा, 0 के साथ चलोगे तो जो माइनस में वैल्यू आएगी वो उसको मिनिमम बताएगा, ठीक है। मिनिमम के केस में ये चीज का ध्यान रखना है, मिनिमम के केस में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहली वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू मान के चलना है, यानी कि मिनिमम इज इक्वल टू ए ऑफ 0, ठीक है ना। नहीं तो अगर आप मिनिमम को 0 लेके चलोगे ना, तो वो क्या कंसीडर करेगा कि आप सबसे 0 तो पहले ही सबसे छोटी वैल्यू लेके चल पड़े हो भाई 0, अब इसके नीचे जो वैल्यू आएगी, माइनस वाली वैल्यू आएगी, अगर -15 आता है, -16 आता है, -1 आता है, तो वो मिनिमम है। लेकिन अपने को तो मिनिमम इस पूरे एंटायर डेटा सेट में से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मिनिमम के केस में हमेशा याद रखना है कि मिनिमम इज इक्वल टू ए ऑफ 0, तो जो सबसे पहली वैल्यू बैठी है ना भैया कि मैं तेरे को मिनिमम मान के चल रहा हूं, ठीक है, और नीचे जाके सिर्फ ये कोड चेंज करना है, बस ये साइन चेंज करना है, बात खत्म होगी, ठीक है ना। इफ ए ऑफ आई लेस देन मिनिमम, देन
मिनिमम इज इक्वल टू ए ऑफ आई, दैट्स इट, बस ये काम है। बस मिनिमम के केस में ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है, कि मिनिमम के केस में सबसे पहली वैल्यू को उठा लो और उसको कंसीडर कर लो, उसको अज्यूम कर लो कि भैया ये सबसे छोटी वैल्यू है। अब तेरे से जो छोटी आएगी मैं इंटरचेंज करता जाऊंगा, देखो इससे छोटी आई 3, फिर 3 से वैल्यू इंटरचेंज होगी, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम के अंदर 3 आ गया, अब उसके बाद 2 आया, तो मिनिमम के अंदर फाइनली 2 आ गया, ठीक है। तो ये मैं आपको इंप्लीमेंट करके नहीं दिखा रहा, तो आपकी असाइनमेंट है, आपने ये आराम से बैठ करके कोड करना है अपने दिमाग से, ठीक है। इस वीडियो को मत देखना, अपने दिमाग से कोड करना, ठीक है। जब फंस जाओगे देन कम बैक टू दिस वीडियो। चलो, मिनिमम और मैक्सिमम तो सर बहुत आसान थे, 5 मिनट में हो गए, बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ गए हमें। और आगे कौन सा प्रोग्राम था? हाँ जी बोलो भाई, आगे कौन सा था? मुझे याद नहीं है। इंसर्ट एलिमेंट आई सपोज, है ना, इंसर्ट एलिमेंट इनटू ए स्पेसिफिक पोजीशन, इंसर्ट एंड डिलीट, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके। चलो चलते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा लॉजिक है, बड़ा सही लॉजिक है, ठीक है जी। तो मेरे पास एरे है, ठीक है जी, मेरे पास एरे है 0, ये 0 इंडेक्स है, लेट्स सपोज यहाँ पे 10 है, 120, 230, 43, ठीक है। तो ये इंडेक्सेस में ऊपर लिख रहा हूँ 1 2 3। चलो, अब ये जो क्वेश्चन है, इंसर्ट द एलिमेंट एट स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ एन एरे, तो बाकी मेरे पास खाली पड़ा है, ठीक है, 4th पोजीशन मेरे पास खाली पड़ी है, क्योंकि अगर आपको इंसर्ट करना है तो एक पोजीशन आपको एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए, ठीक है, याद रखना। क्योंकि देखो, जो कंटेनर में जगह होगी तभी आप कर पाओगे ना, अगर कंटेनर में जगह ही नहीं है तो आप कैसे कर दोगे? तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप इंसर्ट कर रहे हो तो साइज शुड बी ग्रेटर, तो एक वहां पे जगह होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो अभी इसको कोड को बनाते हैं। तो इंसर्ट एलिमेंट, तो मैं यूजर से पूछ रहा हूं कि वेयर यू वांट टू इंसर्ट, लेट्स सपोज ऑन सेकंड पोजीशन दैट आई वांट टू इंसर्ट, ठीक है जी। तो कहता सर 2 पे इंसर्ट कर दो 777, ठीक है, मैं थोड़ा सा ओड नंबर ले रहा हूं सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाएगी। 777 ये आपका इंडेक्स, तो कहता है इस इंडेक्स पे सर 77 को इंसर्ट कर दो, बिल्कुल ठीक है जी। अब हम नॉर्मली गलती क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, आंखें बंद की, ए ऑफ 2, लो जी 777, सर जी हो गया इंसर्ट, लो। लेकिन भैया आपने तो इंफॉर्मेशन मिस कर दी, 30 कहां गया, हमें तो 30 भी चाहिए था। हाँ सर, वो तो मैंने ध्यान ही नहीं किया, 30 तो मिस हो गया, और हमारे पास जो आउटपुट आती है वो फिर ये आती है 10 20 7 7। हम बोलते हैं सर कोड तो बिल्कुल सही लिखा था, आपने लॉजिक में ये गड़बड़ कर दी। मैंने क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है, मैंने दी थी कि भैया ये आउटपुट आनी चाहिए, यस ये आउटपुट चाहिए, लेकिन आपकी आउटपुट तो ये आ रही है, तो आपने लॉजिक में मिस्टेक कर दी। ये नॉर्मली करते हैं हम लोग, ये नॉर्मल एरर आती है हमारे पास, 90% आती है जब हम फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को अटेम्प्ट करते हैं। क्यों आती है? आने का कारण यही है कि हमें इसके बिहाइंड लॉजिक पता ही नहीं है, तभी ये एरर आती है। हाँ सर, ये तो बिल्कुल ठीक बात आपने बोल दी। अब क्वेश्चन ये है कि पहले इसको समझते हैं कि होगा कैसे। अब होगा कैसे, हमने कोड किया था अपनी जिंदगी में स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स। हाँ जी सर, किया था, बिल्कुल सर, आपने करवाया, आपने तो नहीं करवाया, लेकिन हमने ये किया हुआ है, सुना हुआ है, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स, ये शायद मैंने नहीं करवाया, तो स्टिल दिस वन योर असाइनमेंट। तो स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर क्या है कि 2 नंबर्स को अदल बदल करना है, तो वो लॉजिक यहां पे इंप्लीमेंट होने वाला है। वो तो बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन होगा कैसे? होगा कैसे? अगर आप इस चीज को इंप्लीमेंट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट दिस, देन व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, आपको ये वैल्यू को यहां लेके आना है, ये वैल्यू को यहां लेके आना है, ठीक है जी, ये वैल्यू को यहां लेके आना है। अब देखो क्या हो रहा है, वैल्यू ओवरराइड हो रही है, ठीक है जी, मैंने वैल्यू को ओवरराइड कर दिया, अब यहां पे स्टिल 30 ही है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक हिस्सा पीछे जा चुका है, यानी कि ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। अगर मैं इसको करूं दोबारा से, एक बार आपको करके दिखाऊं, तो हुआ क्या, मेरे को जो पोजीशन दी गई थी वो 2 दी गई थी। अगर मैं सीधा 2 पोजीशन के अंदर 7 7 डाल दूंगा तो 30 मिसप्लेस हो जाएगा, लेकिन मुझे 30 को मिसप्लेस नहीं करना,
ये सबसे बड़ा कारण है। ठीक है जी, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस 40 को पहले इधर लेके जा रहा हूं। जब इस 40 को इधर लेके गया तो 2 बार 40 आ गया, अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है, अब इस 30 को मैं 40 के ऊपर ओवरराइट कर रहा हूं। अब इस 30 को मैं 40 के ऊपर ओवरराइट कर रहा हूं। अब ये काम हो गया, काम हो गया जी आपका। अब जब ये काम हो गया उसके बाद, यानी कि जब ये मेरा लूप खत्म हुआ, तो उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इस पोजीशन पे क्या करना है, ये 777 डालना है। स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। जो 30 में था वो 40 में चला गया, जो मतलब 3 पोजीशन पे था वो 40 पे चला गया। ठीक है जी, तो ये मेरा लॉजिक है, ये मेरा काम है, कोई जादू नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, जादू ये है कि अपने को जो लास्ट वैल्यू है उसको एक आगे लेके गए। ठीक है जी, एक आगे लेके गए, फिर कहता हमने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। तो ये हो गया आपका इंसर्शन। ठीक है जी, इंसर्ट एट स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, तो अब इसका बनाते हैं कोड। तो कोड बनाने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यूजर से पूछ लिया नंबर ऑफ एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट दैट यू वांट टू एंटर। तो उसने बोल दिया एक्स में कि भैया मैं 5 एलिमेंट एंटर करना चाहता हूं। तो उसने एरे के अंदर 5 एलिमेंट एंटर कर दिए। ठीक है जी, कुछ भी एंटर कर दे वो उसकी चॉइस है। 0 पोजीशन 1 2 3 4 5। ठीक है, तो वो मान के चलो जो मेरा एरे था वो 6 का था, ठीक है, या 5 का था, ठीक है, या 6 का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितने का लेना, 100 का लेना 100 का ले लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब उसने सिर्फ 5 वैल्यूज एंटर की। अगर मैं 10 का एरे लेके चल रहा हूं तो मेरे पास ये पोजीशन खाली पड़ी है, क्योंकि तो ये मैं आपको कल बताया था कि एरे की डिसएडवांटेज है, अगर वो जितना डिक्लेरेशन हो चुका है उतनी मेमोरी वो स्टोर करके रखेगा, उसको रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने वैल्यूज डाल दी। ठीक है, यहाँ पे उसने वैल्यू डाल दी, तो वो यूजर से मैं वैल्यू डलवा रहा हूं, तो मैंने यूजर से वो वैल्यू डलवा ली। ठीक है, अब उसके बाद मैं उससे पोजीशन पूछ रहा हूं, तो वो मुझे पोजीशन बता रहा है कि भैया 2 पोजीशन के ऊपर, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर जाकर के कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, पोजीशन 2 पे जो तूने वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, जो तूने एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो एलिमेंट तूने कौन सा इंसर्ट करना है, एलिमेंट तूने 777 इंसर्ट करना है। ठीक है जी, तो ये 2 चीजें मैंने उससे पूछ ली। तो एक तो पोजीशन होगी, एक तो हो गया उसका एलिमेंट। ठीक है, जो उसने एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो इसके बाद अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब मैं एक छोटा सा लॉजिक सा लगा रहा हूं, बड़ा स्मॉल सा लॉजिक है। तो वो लॉजिक क्या है, कहता लेट्स सपोज इफ, ठीक है जी, मैं थोड़ा सा इसको और स्मार्ट सा कोड बना रहा हूं। ठीक है, इफ पोजीशन, ठीक है जी, पोजीशन ग्रेटर देन x प्लस 1। ठीक है जी, अगर तो आपकी पोजीशन जो है वो x प्लस 1 से बड़ी है, ठीक है ना, x का मतलब क्या, 5। ठीक है, तो 5 है, 5 एलिमेंट है, अगर 5 से बड़ी पोजीशन है, यानी कि आप इस पोजीशन की बात कर रहे हो, यहां पे इंसर्ट करने की बात कर रहे हो। ठीक है, एक तो खाली रहेगा, लेकिन मान के चलो आपने 6 नंबर डाल दिया, तो 6 में नहीं आ सकता। ठीक है ना, क्योंकि 5 में ही हमने करना है, तो वो 6 में नहीं आएगा। तो मैं उसको बोल रहा हूं पोजीशन नॉट वैलिड, या यू कैन से पोजीशन इज नॉट वैलिड लेंथ। ठीक है, तो ये मैंने ये चीज भी चेक कर ली। ये आपने करना है करो, नहीं करना है ना करो, लेकिन मैं थोड़ा सा स्मार्ट कोड बना रहा हूं। ठीक है, यानी कि वो फिफ्थ तो खाली है, यहां पे होगी ना, यहां पे होगी, लेकिन आपने पोजीशन दे दी है, या तो ये हो सकती है या इन बिटवीन कोई भी पोजीशन हो सकती है, लेकिन आपने पोजीशन दे दी 6, तो 6 इज नॉट ए वैलिड पोजीशन। तो वो बोलेगा कि भैया दिस पोजीशन इज नॉट वैलिड। ठीक है, ओके जी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, अब बनता है मेरा लॉजिक। ठीक है जी, अब लॉजिक क्या बन रहा है, अब मैंने उससे पूछ लिया एलिमेंट। ठीक है, अब ये मैं पूछ रहा हूं कौन सा एलिमेंट तूने ऐड करना है, सी आउट एंटर एलिमेंट। ठीक है जी, तो एलिमेंट के अंदर मैंने ये कोड लिख दिया। ठीक है, जो एलिमेंट है वो मैंने ये ऐड करना है, लेट्स सपोज 777। ठीक है जी, सी इन से मैंने उससे मांग लिया, तो मैंने थोड़ा स्मार्ट कोड बना दिया। मैंने ये चीजें मांगी कब, जब तू बिल्कुल काम सही कर रहा है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप अगर तू सही चल रहा है तब तेरे से मांगा जाएगा, अदरवाइज तेरे से कुछ नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, अगर वो पोजीशन ही गलत दे रहा है तो उससे फिर नहीं मांगा जाएगा, अगर वो पोजीशन सही दे रहा है
तो फिर उससे मांगा जाएगा अच्छा भैया एलिमेंट कौन सा एंटर करना है, कहता 777 एंटर करना है, यानी कि उसकी पोजीशन बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, वही कॉन्सेप्ट, अगर उसका यूजर नेम सही है देन आई एम आस्किंग फॉर द पासवर्ड। अगर उसने पोजीशन ही नहीं सही दी तो मैं उससे एलिमेंट क्यों मांगू भाई, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने स्मार्ट सा कोड बना दिया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने जो लॉजिक समझाया था आपको, तो यहां से चलना है ना। अब देखो पोजीशन यहां है, इनको तो छेड़ने की जरूरत है ही नहीं अपने को, इनको तो छेड़ने की जरूरत है ही नहीं, ये तो अपनी पोजीशन पे बिल्कुल सेट बैठे हैं, इनसे पंगा लेने की तो कोई जरूरत है ही नहीं ना अपने को। तो अपने को यहां से ही चलना है, तो अपना टारगेट यहां से है जो उसने पोजीशन दी है, तभी मैंने पोजीशन को वेरीफाई किया है कि भैया तू पोजीशन सही डाल रहा है कि नहीं डाल रहा, ठीक है। अब क्या है, कहता मैंने क्या किया, और ठीक है जी, लूप लगा रहा हूं, सिंपल लूप के बिना तो आपको पता ही है काम होगा नहीं है। इंट j इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है जी, j इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, उसके बाद j ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन, ठीक है जी, क्योंकि मुझे इन एलिमेंट्स को तो छेड़ना नहीं है भाई, आई डोंट वांट टू स्टेप आउट विद दीज एलिमेंट्स। तो ये तो मेरे लिए बिल्कुल सही ठिकाने पे हैं, इनके साथ तो अपने को काम ही नहीं करना, यानी कि अपने को जो काम करना है वो यहां से यहां तक करना है, ठीक है ना, यहां से यहां तक करना है, ठीक है ना, यहां से यहां तक करना है। तो ये अपना मेन टारगेट है, ठीक है ना, ये अपना मेन टारगेट है, याद रखना, क्योंकि इनको तो छेड़ना ही नहीं ना है। तो अपने को जो लूप चलनी है वो यहां से चलनी है, क्योंकि सबसे पहले तो यही एलिमेंट को हमने करना है ना, ये जो खाली पोजीशन है इसको भरना है, इसको किसके साथ भरना है, इसको इसके साथ भरना है, यानी कि मुझे रिवर्स में चलना है, यानी कि ये पोजीशन, फिर ये पोजीशन, फिर ये पोजीशन, फिर ये पोजीशन। अब इसको करने का तरीका यही है, अगर मैं यहां से चलूंगा तो फिर मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। अब मैंने क्या किया, जो सबसे लास्ट एलिमेंट था, यही कर रहा हूं ना, जगह बना रहा हूं, सबसे लास्ट एलिमेंट था तो मैं यहां पे उसको डाल रहा हूं, यानी कि मुझे यहां से चलना है, यानी कि जो आपने ऊपर दिया था x5 दिया था, तो यानी कि आपने वहीं से चलना है, याद रखना है, यानी कि ये फोर्थ इंडेक्स को आपने उठाया और क्या करना है, इसको इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। और चलना कहां तक है, यहां से आपने यहां तक चलना है बस, यानी कि ये वाली चीजों को छेड़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप मैक्सिमम से चल रहे हो, ये मैक्सिमम से चल रहे हो, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ। मिनिमम आपका क्या बन रहा है इस कंडीशन में, मिनिमम आपकी पोजीशन बन रही है, यानी कि मैक्सिमम टू मिनिमम चल रहे हो, मैक्सिमम टू मिनिमम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम टू मिनिमम। तो मैक्सिमम क्या है आपका, जो भी आपने नंबर ऑफ एलिमेंट दिए, ठीक है ना, अगर आप 5 दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है 0 to 4 है, अगर आप 6 एलिमेंट दे रहे हो तो उसका मतलब क्या है 0 to 5 है। तो यानी कि ये मेरा मैक्सिमम 5 है, और मिनिमम कितना है, जो पोजीशन है, किस पोजीशन पे आपने फेरबदल करना है, आपने 5 नंबर पोजीशन पे अगर मैं चल रहा हूं तो आपने 2 नंबर पोजीशन पे फेरबदल करना है, तो आपका मिनिमम 2 है। यानी कि अगर हम मैक्सिमम टू मिनिमम चलने की बात कर रहे हैं तो मैं रिवर्स लूप की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं किस लूप की बात कर रहा हूं, मैं रिवर्स लूप की बात कर रहा हूं। तो जे माइनस माइनस, लो जी सर, ठीक है जी, अब समझ आ गई बात कि हमने ये एलिमेंट के ऊपर मेरा पॉइंटर खड़ा है, ठीक है जी, ये एलिमेंट के ऊपर मेरा पॉइंटर खड़ा है। अब मुझे ये एलिमेंट पे जो पॉइंटर खड़ा है उसको यहां पे लेके जाना है, ठीक है। फिर मेरा पॉइंटर ये एलिमेंट पे खड़ेगा, फिर मुझे इसको यहां पे लेके जाना है, फिर मेरा पॉइंटर ये एलिमेंट पे खड़ेगा, मुझे इसको यहां पे लेके जाना है, फिर सर बाद में मुझे क्या करना है, मुझे उसको चेंज कर देना है, दैट्स इट, ठीक है जी, ये काम है। चलो जी, अब ये हम इंटरचेंजिंग कर रहे हैं, हम शफलिंग कर रहे हैं अब डाटा की, ठीक है। तो डेटा की शफलिंग कैसे करनी है, ठीक है, नेगेटिव में चल गए, अब ए ऑफ जे, ठीक है जी, जे प्लस वन का मतलब, यानी कि इस पोजीशन पे क्या डालना है, इस पोजीशन पे ये डालना है। मेरा पॉइंटर खड़ा कहां पे है, कहता फोर्थ पोजीशन पे है, तो ये पोजीशन को उठा करके जो भी इसके अंदर एलिमेंट है वो A5 के अंदर डाल दे। लो जी, ए ऑफ जे, परफेक्ट, ये तो हो गया काम, यानी कि यहां पे 50 था वो यहां पे आ चुका है, ठीक है जी। अब यहां पे भी 50 है, ठीक है ना, अब यहां पे भी 50 है, तो यहां पे भी 50 है। अब यहां पे क्या करना है, हाँ जी, क्या करना है, यहां पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना। तो अब ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, काम होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये आइटम यहां पे गई, अब कर्सर यहां पे खड़ा है, ये आइटम यहां पे आ गई, ठीक है जी। अब कर्सर कहां पे खड़ा है, यहां पे, और ये आइटम यहां पे। फाइनली क्या होगा, 2 बार आपके पास 30-30 है, यानी कि जगह बन चुकी है, ठीक है ना। ये लूप चलाने के बाद यानी कि जगह आपकी बन चुकी है। अब जब ये काम खत्म हो गया,
ठीक है ना। अब ये काम खत्म हो गया, तो मेरी पोजीशन कितनी थी, जो भी मेरी पोजीशन थी उसके अंदर क्या डालना था, उसके अंदर कहता है एलिमेंट डाल दे। ठीक है जी। अब यानी कि अगर यहाँ पे 30 है तो ये 30 मैं यहाँ पे स्टोर कर चुका हूं, तो यहाँ पे एलिमेंट डाल दे 777। लो जी 777, बात खत्म। ठीक है जी, हो गया काम, ये काम था। ठीक है, अब उसके बाद कहता है एरे को प्रिंट करवा दे। एरे को प्रिंट करवाने के लिए 4i = 0, i <= that, c out of a of i। अब जो नया एरे आपके सामने आएगा वो ये आएगा 10 20 777 30 40 50। यू विल गेट दिस एरे, ये एरे आपको मिल जाएगा। ये वो कोड है जिससे आप बचपन से भागते जा रहे हो, इंसर्ट एलिमेंट इनटू ए स्पेसिफिक पोजीशन। तो ये देखो छोटा सा कोड है जी, बिल्कुल स्मॉल सा कोड, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ हमें सबसे पहले उसके पीछे छिपा हुआ मैथमेटिक्स पढ़ना है। तो मैथमेटिक्स क्या था कि हमने मैक्सिमम टू मिनिमम चलना है। तो मैक्सिमम टू मिनिमम चलने का मतलब जो लास्ट वैल्यू है, कहता सबसे पहले तो वहीं पे जाके छेड़ बदल करोगे ना। अगर इस तरफ से चलना चालू कर दोगे तो फिर ओवरराइट होगी, क्योंकि आप लोग नॉर्मली इस तरफ से चलना चालू करते हो, तब आपके सामने जो ये आउटपुट आती है 10 20 777 40 50। क्योंकि हम जगह नहीं बनाते, हमें रूम बनाना है पहले। ठीक है, हम जगह बनाते हैं, जगह बनाने के बाद फिर हम इंटरचेंज करते हैं। तो इस काम ने क्या किया है, इस काम ने यहां तक जो काम है, इस काम ने आपको डबल एक एरे बना के दे दिया है, जिसमें उस पोजीशन पे जहां पे आपने चेंज करना है वो वैल्यू अगली पोजीशन पे जा चुकी है। अब आपके सामने ये चेंज है, आप सीधा जाकर के यहां पे चेंज कर दो, बस हो गया काम। ये लॉजिक था। तो आई होप कि ये सबको समझ आ गया। प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, प्लीज जस्ट रेज योर हैंड अगर आपको ये। हाँ जी प्लीज आस्क। सर एक डाउट था। हाँ पूछिए। सर वो वाली स्क्रीन एक बार ओपन करना जो कोड वाली थी। अच्छा जी, एक मिनट। हाँ जी सर जो पहले थी सर, उसमें जो हमने एग्जांपल ली थी, मुझे ये पूछना था कि हमने एरे का साइज कितना लिया था, 10 लिया था। हाँ, वो तो हमने मैक्सिमम साइज ले लिया ना इसका 10। सर तो हम एक्स वैल्यू को कैसे, आई मीन किस बेस पे एक्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं? एक्स तो हम ले लेना कि हाउ मेनी एलिमेंट दैट यू वांट टू एंटर, पहले हम एरे में डलवा रहे हैं ना उससे वैल्यूज। ओके, ये उसकी वैल्यू है। मेरे पास 100 चेयर्स हैं। ठीक है, मेरे पास 100 चेयर्स हैं। अब उस चेयर में से आपने कितने बंदे बिठाने हैं वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने 5 बिठाने हैं, आपने 6 बिठाने। पहले मैंने आपसे पूछा कि आपको कितने बिठाने हैं, फिर मैं अगले राउंड में आपसे पूछ रहा हूं कि आपने किस पोजीशन पे नया बंदा ला करके इंसर्ट करना है। यस सर, ओके सर। पहले मैंने आपको बोला कि भैया पहले बिठाओ, पहले ये 5 बंदे हैं बिठाओ। अब नया बंदा आ गया छठा, तो छठे को कहां पे लगाना है वो मैं आपसे यहां से पूछ रहा हूं कि भैया कौन सी पोजीशन पे इसको बिठाऊं। ठीक है, हाँ जी प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आपको समझ आ गया, जस्ट रेज योर हैंड, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये कोड आपको समझ आ गया। सर एक डाउट था ये। हाँ जी पूछिए। सर जो फॉर लूप पहले वाली लगाई है उसमें कंडीशन लगाई है इंट x = j-1, हाँ हाँ j = x-1। सर उसमें x की जो एलिमेंट हमने x के लिए वो 5 एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं एरे हाँ में। 5 के है ना डियर, तो फिर 0 से 4 नहीं होता है ना। और वो इंडेक्स को लेके चल रहे हैं हाँ, हम चल ओके एरे के केस में तो चलना ही इंडेक्स के साथ है। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, ओके एरे क्योंकि अपने को यहाँ पे पहले खड़ा करना है ना, कर्सर कर्सर यहाँ पे खड़ा है। ओके अब कोडिंग में यहाँ पे जाना है। ठीक है, हाँ जी। एनीवन एल्स जिसको डाउट हो कोई, प्लीज डू लेट मी नो। बस 1 2 3 4 बंदों को समझ आया, बाकियों को अब देखो धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, बस बाकियों को बस चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो जी, अब ये आपको समझ आ गया, इंसर्ट एलिमेंट एट स्पेसिफिक पोजीशन। वेरी गुड। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं आगे। हाँ जी, अगला कोड क्या था? हाँ जी, अगला क्या था, कोई बताएगा? तो डिलीट वाला तो अब शायद आप कर लोगे मेरे को लगता है, आई होप। हाँ जी, डिलीट वाला सर आप लॉजिक बता दो, कोड बना लेंगे सर हम। ठीक है जी। अब देखो डिलीट में ना अब एक दिक्कत है।
दिक्कत नहीं बोल सकते, ये प्रॉपर्टी बोल सकते हैं एरे की। तो डिलीट में क्या है, तो कहता है ये मेरी एरे है 10 20 30 40 50, ठीक है। तो अब इसमें ये डिलीट करना है ना, अब इसमें ये डिलीट करना है। अगर मैं मान के चलो इसको बाहर निकालना चाहता हूं, तो इसका मतलब पता क्या है, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी और ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि ये वैल्यू डिलीट नहीं होगी, है ना। अगर देखा जाए तो ये वैल्यू डिलीट नहीं होगी, आप इसको मैन्युअली 0 कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये मेमोरी डिलीट नहीं होगी बेसिकली। अगर मैं रियल टाइम की बात करूं, ठीक है ना, तो रियल टाइम की बात करूं, तो रियल टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो ये मेमोरी डिलीट नहीं होती, लेकिन पाइथन के अंदर आप इस टुकड़े को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। पाइथन में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है कि आप इस टुकड़े को ही बाहर निकाल दो, तभी तो हम यूज करते हैं लिंक लिस्ट। आपको याद होगा लिंक लिस्ट में क्या है कि ऐसे टुकड़े हैं, ठीक है ना, ऐसे टुकड़े पड़े हैं मेरे पास, तो ये पूरी मेमोरी में बिछे पड़े हैं, ठीक है ना, ये पूरी मेमोरी में बिछे पड़े हैं। तो मान के चलो ये टुकड़ा यहाँ पे पड़ा है, ये मेरी पूरी मेमोरी है, ये टुकड़ा यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, एक टुकड़ा यहाँ पे पड़ा है, कोई टुकड़ा यहाँ पे, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, वो आपस में किसी ना किसी तरीके से इंटरकनेक्टेड है। अब लिंक लिस्ट में हम क्या कर देते हैं, हम ये टुकड़ा डिलीट कर देते हैं, अब ये कनेक्शन जो है इसके साथ बना देते हैं, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में ये बेनिफिट है। लेकिन अगर मैं एरे की बात करूं तो एरे में तो ऐसे है ना, कंसेक्यूटिव है। एरे में तो ये अगर आपकी मेमोरी है, ठीक है ना, ये अगर आपकी मेमोरी है तो उसमें इतना हिस्सा आपको दे दिया, उसमें इतना हिस्सा आपको दे दिया, तो ये कंसेक्यूटिव हिस्सा आपको दे दिया। अब इसमें आप स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं कि इतना हिस्सा डिलीट करना है, तो आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारा लिंक टूट रहा है, तो आपको या तो सारा ही डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, आप इतना हिस्सा डिलीट नहीं कर सकते। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ एरे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे है कि आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, आप उसको ओवरराइट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 10 20 30 40 50 है, ठीक है, और ये 60 है मान के चलो, तो आपको इस 30 को डिलीट करना है। तो 30 को डिलीट करने का मतलब क्या है कि आप सिर्फ ओवरराइट कर रहे हो, यहाँ पे 40 लेके आ रहे हो, यहाँ पे 50 लेके आ रहे हो, और यहाँ पे 60 लेके आ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आप कर रहे हो, तो ये चीज आप कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो 60 है ही है, यहाँ पे तो 60 है ही है, ठीक है ना। तो ये डिलीट नहीं हुआ, या तो एंड में जाकर के लास्ट वैल्यू में 0 फिल कर दो, ठीक है, या फिर अपने अगले केस में जो आपने लूप चलाना है, तो पहले केस में अगर 1 2 3 4 5 वैल्यू की वो लूप चल रही है, तो अगले केस में वो 4 वैल्यू की लूप चलेगी। नहीं तो पता क्या होगा आपको, जो अगर आप 5 की ही चलाओगे तो आपको आउटपुट पता क्या आएगी, 10 20 40 50 60 60, तो आपको ये आउटपुट आएगी। लेकिन आप चाहते हो कि 2 बार क्यों आए, तो आप एक कम से लूप चलाओ, जब प्रिंटिंग कर रहे हो ना तो एक कम से लूप चलाओ। तो इसका फंडा ये है, यानी कि जब हमने प्रिंटिंग करनी है तो लूप एक कम से चलानी है, ठीक है, लेकिन जब हमने काम करना है तो वो काम तो आपको फिर करना ही है, ठीक है। आई थिंक यू गाइज अंडरस्टैंड बेटर, है ना। तो आप ये चीज, हाँ जी, ये पता लग गया आपको, हाँ जी पता लग गया, हाँ जी, ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। हाँ तो जी ये सर। चीज को आपको मैनेज करना है, और इसका कोड बड़ा आसान सा है, ठीक है। तो मैं छोटा सा कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने लोकेशन ले ली, ठीक है, वट एवर लोकेशन योर, जो पोजीशन या लोकेशन, ठीक है, जो भी आपने पोजीशन ली, सेम मान के चलो आप 2 ले रहे हो 3 ले रहे हो, वो आपके ऊपर है। तो आपको एक लूप बनाना है, इंट आई इज इक्वल टू पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन जो चलेगा, लेकिन चलेगा कहां से, आई लेस देन एन तक, जितने भी आपके नंबर है, अगर 5 है तो वो 0 से लेकर के 4 तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस, ये तो नॉर्मल लूप है, यानी कि अगर आप पोजीशन 2 पे खड़े हो, ठीक है ना, पोजीशन 2 पे खड़े हो, 2 3 4 5, ठीक है ना, तो यहां तक चलना है, यानी कि 2 3 4 5 तक आपको चलना है। तो ये लूप चल गया, यानी कि इस डायरेक्शन में आपको चलना है, ठीक है। पिछले केस में था हम स्वैपिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे वेरी सिंपल, ए ऑफ आई जो पोजीशन है उसके अंदर कौन सा डालना है, उसके अंदर ये डालना है, तो क्या आएगा, ए ऑफ आई प्लस 1, दैट्स इट, ये काम हो गया आपका। तो अब हुआ क्या, अब ध्यान से देखो, ए ऑफ पोजीशन क्या है, तो अगर आप 2 पे खड़े हो, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा बना ही देता हूं, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो 10 20 30 40 50, अगर आप 2 पे खड़े हो, है ना, तो 2 पे खड़े हो तो आपको 3 को यहाँ पे ओवरराइड करना है, 40 हो गया। फिर आप आगे बढ़ रहे हो, 3 पे खड़े हो रहे हो, ये आगे डायरेक्शन में 3 पे खड़े हो तो 4 को ओवरराइड करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 50 हो गया, ठीक है। अब फिर आप यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ पे अगले वाले को ओवरराइड करना है, तो फिर यहाँ पे 60 हो गया। तो सेम चीज दैट यू आर परफॉर्मिंग ओवर हियर। लेकिन जब आपको प्रिंटिंग करनी है, ठीक है, जब आपको प्रिंटिंग करनी है तो वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि इंट आई इज इक्वल टू 0 से चलेगी,
और उस टाइम पे जब आप प्रिंटिंग करोगे i लेस देन n-1 करोगे और i प्लस प्लस करोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, c आउट ऑफ a ऑफ i करोगे, बस ये चीज का आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है इसमें, बड़ा आसान सा कोड है, ठीक है। क्योंकि इसमें ये है, मैंने आपको बता दिया कि इसकी ड्रॉबैक ये है कि यू कैन नॉट डिलीट एनी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन, तभी हमें लिंक लिस्ट पे जाते हैं। लिंक लिस्ट क्या है? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, तो वो मेमोरी का बेटर यूटिलाइजेशन कर देता है, ठीक है ना। अब इस केस में आपको एक टुकड़ा निकालना था वहां से, तो आपने निकाल दिया, लेकिन इस केस में आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसको आप डिलीट कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, लीव कर दो, क्योंकि लिंक है ना। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर रियल टाइम में बात करें तो ये आपके पास बॉल्स पड़ी हैं, अब आपको इसके साथ एक दूसरे के साथ लिंक करना है। अब आप इस बॉल को निकालना चाहते हो तो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, इसका लिंक उठा करके इसके साथ कर दो। तभी तो हम बोलते हैं ना लिंक पार्ट एंड इंफॉर्मेशन पार्ट। इंफॉर्मेशन में आपका डेटा है, लिंक में वो लिंक है, लेकिन ये भी मेमोरी डबल लेता है अगर देखा जाए, ये अननेसेसरी मेमोरी लेता है। ये एक मेमोरी लेता है इंफॉर्मेशन के लिए, एक मेमोरी लेता है लिंक के लिए, लेकिन इसमें ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, इसमें ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, बस इसका ये बेनिफिट है, ठीक है जी। तो ये आपको बता दिया। तो आई थिंक आपके अब जो दो मेन प्रोग्राम बचे हैं, बाइनरी और बबल सॉर्ट, है ना। अब यही बचे, बाकी तो ऑलमोस्ट सारे हमने कर दिया, मिनिमम कर दिया, मैक्सिमम कर दिया, डिलीट कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो अगला प्रोग्राम क्या है आपका? बबल सॉर्ट और बाइनरी। हाँ जी, यही है बबल सॉर्ट और बाइनरी ना। तो ये आपको, आपने अटेम्प्ट किया? अच्छा प्लीज रेज योर हैंड जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया था, बबल सॉर्ट और बाइनरी। चलो अभी आपके पास, जिन्होंने नहीं किया तो आपके पास अभी है आज का दिन, तो कल हम 2D एरे के कोड देखेंगे, उसकी असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। तो बाइनरी और बबल को हम कवर करेंगे कल। तो आई होप आपको ये पूरा सिनेरियो समझ आया। ये थोड़ा सा सेकंड गियर का काम है, यानी कि अब आप सेकंड गियर में आ चुके हो, लेकिन बड़े स्मूथली आए हो, तो आपको इतना फील नहीं हुआ। तो हमेशा कोशिश करो पहले उसका लॉजिक सोचो, आफ्टर दैट ट्राई टू इंप्लीमेंट दैट। हमेशा उसका मैथमेटिक्स सोचो और गूगल मत करो, गूगल पे आपको सब कोड मिल जाएंगे। आपको बाइनरी सर्च मारोगे बाइनरी मिल जाएगा, वो कॉपी पेस्ट होगा, वो अपने आप को चीट करना होगा। तो अपने आप को चीट नहीं करना, आपने कोड बनाना है। कोड बनाने के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, उसकी एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम फर्स्ट, देन मूव टू द कोड पार्ट। प्रायर टू मूव टू द कोड पार्ट, फर्स्ट इंप्लीमेंटिंग दीज थिंग्स इनटू द रियल टाइम सिनेरियो। ओके, इन चीजों को रियल टाइम में कन्वर्ट करो, अपनी नॉर्मल जिंदगी में इसको लेकर के आओ, नॉर्मल जिंदगी में इसको कन्वर्ट करो, फिर ये चीजें बड़ी आसान लगती है। देखो मैंने अभी आपको कंसेप्ट समझाए, अब आप जिंदगी भर अगर आपने ये सुने हैं तो आप जिंदगी भर मैं बेट लगा सकता हूं कि आप कभी नहीं भूलोगे ये कॉन्सेप्ट्स। और आप इंटरव्यू में इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे, सर दिस वन इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस, ठीक है ना। तो वो इंटरव्यूअर को पता लग जाएगा इस बंदे के, इस बंदी के लॉजिकली बड़ी साउंड है ये, ठीक है। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन है बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन? प्लीज डू लेट मी नो। हाँ जी, है किसी का कोई क्वेश्चन तो एक बार मेरे से पूछ लीजिए बिफोर क्लोज दिस सेशन। नो वन? किसी का नहीं है? क्या बात है, इतना बढ़िया पढ़ाता हूं मैं, क्या बात है कि कोई क्वेश्चन नहीं किसी का भी। हाँ जी, तो पता है ना कल आप लोगों का सैटरडे आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट है, और संडे मैं कंफर्म करूंगा कि आप लोगों की इंटरव्यू है कि नहीं है। एंड इंटरव्यू शुड बी प्रॉपर इंटरव्यू, ठीक है। तो वो प्रॉपर वाइवा नहीं है, वो इंटरव्यू है, जस्ट लाइक दैट। तो कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं आपको बोलूं अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाओ कि आप कोड लिखो और कोड करके दिखाओ, ठीक है। और कैमरा आपका ऑन रहेगा, ठीक है जी। हाँ जी, एनीवन? सर एक आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, पूछो पूछो यार, कोई दिक्कत। सर थोड़ा बहुत मतलब कुछ दिन से हडूप पे मतलब ट्राई कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था उसकी, तो कल सर वो सेफ मोड में चला गया। सर वो क्यों चला जाता है? वो चला जाता है यार, जब आप कंटिन्यूअसली उसको रखते हो तो वो सेफ मोड में आ जाता है। तो कमांड आती है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली उसको सेफ मोड कमांड तो सर मिल गई थी, कमांड तो सर मिल गई थी, लेकिन सर मैं जानना चाहता था कि उसको मतलब अगर क्या प्रिवेंट करना हो कि वो बार बार सेफ मोड में ना जाए। उसकी, हाँ उसकी एक कमांड थी कि उसको सेफ मोड से आपको, क्योंकि जब हम इंस्टॉलेशन के टाइम पे ना हम एक पॉइंट स्किप कर देते हैं, तो वो क्या रहता है कि वो सेफ मोड पे चला जाता है। हाँ जी सर, हाँ वो चला जाता है सेफ मोड पे। तो उसकी एक कमांड भी थी कि हमें सेफ मोड को ऑफ करना है। सर वो सेफ मोड से तो बाहर आ ही जाता है ना, मतलब जो Hadoop DFS एडमिन, और वो सेफ मोड से हम लीव कर देते हैं, हाइफन सेफ मोड से। हाँ 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 हाँ, तो सर मतलब इसको प्रिवेंट करने का कोई तरीका नहीं है सर? ये चला ही जाएगा बार बार? हाँ जाएगा ही यार, अगर आप उसको छोड़ दोगे तो ये जाएगा ही जाएगा।
तो इसका सर कोई स्पेसिफिक रीजन सर क्यों चला जाता है? ये सिर्फ यही है ना कि आपका हडूप अब क्या है, बेसिकली एक क्लस्टर है। हाँ जी सर। ठीक है, तो अब ये जब अनस्टेबल है, हाँ जी। ठीक है, जब अनस्टेबल होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सेफ मोड में चला जाता है। ठीक है सर। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपने आप को बचाने वाले मोड में आ जाता है कि यार कुछ है, गड़बड़ है, क्योंकि आपकी इंस्टॉलेशन जब की है ना आपने, तो वो हाँ आपने जी इंस्टॉलेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। सर, मैंने बस इतना किया था कि कोई स्पेसिफिक आईपी ही कनेक्ट कर पाए, बाकी ना कनेक्ट कर पाए। हाँ, तो वो वो बस क्लाउड पे वही करना है। था। तो आप, हाँ, तो आपने कुछ ना कुछ फेरबदल की है, ऊपर नीचे किया है, तो हाँ जी सर। वो उसको अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, यार कुछ अनस्टेबल सा हो रहा है, तो उसके हाँ अंदर जी। इतनी एल्गोरिथम है हडूप के अंदर कि आपको इन चीजों को सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कोड के ऊपर फोकस करना है। हाँ जी हाँ जी सर, वो फिर मतलब जब उसको सेफ मोड से बाहर कर दिया था, तो वो सर जब भी कोई फाइल अपलोड करते थे तो वार्निंग देता हाँ, रहता था। वो नहीं देता, हाँ, वो एरर देगा कि नहीं करने पाएंगे, क्योंकि वो हाँ रीड जी ओनली मोड है, क्योंकि वो रीड ओनली मोड चला गया। हाँ जी सर। हाँ, तो क्लस्टर आपका सिर्फ रीड ओनली मोड में चला गया, तो आप उसमें ठीक है। कुछ नहीं डाटा डाल सकते। ठीक है, तो आपको फिर ठीक है उसको सर। बंद करके, ठीक है, फिर दोबारा से करना पड़ता है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो वो आपने जब गड़बड़ करते हैं ना हम अंदर, तो ये अपने आप को बचाने के लिए फिर सेव मोड पे आ जाता है। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर। है, ओके। क्या कर रहे हो आप हडूप में, क्या सीख रहे हो? सर हेडूप ही कर रहा था अभी, तो बेसिक कर रहा था, स्टार्टिंग के क्लस्टर कैसे बनाते हैं, नेम नोड्स से डाटा नोड्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है, अच्छा, वो सब। इंस्टॉलेशन कर रहे हो अभी? हाँ हाँ सर, इंस्टॉलेशन हो गई, कॉन्फ़िगरेशन हो गई कि किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, प्रॉपर्टीज कैसे लिखी जाती हैं उसकी, अच्छा वो अच्छा, सब जावा सर। आता है आपको? नहीं सर, जावा साथ साथ करूंगा ना सर, जैसे जैसे यूज केस की जरूरत क्योंकि पड़ती जाएगी वैसे। मैप रेड्यूस में कोड होगा वो जावा में ही किया जाता है मैक्सिमम, हालांकि मैप रेड्यूस कम यूज होता है इंडस्ट्री में, हाँ जी हाँ जी, लेकिन मैं, नहीं सर, जैसे जैसे यूज केस आएगा ना तो उस हिसाब से सर कर लेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, अगर चाहिए होगा मटेरियल तो ले लेना मेरे से, मेरे हाँ पास जी हाँ जी। अभी तक हाँ जी बहुत सर। मटेरियल है। ठीक, मैं करवाऊंगा अभी ठीक आप है। लोगों को, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ जी कुछ हाँ जी हिस्सा सर। आपको करवा दूंगा हडूप ना, ठीक है सर। सो दैट आप अपने रिज्यूमे में एटलीस्ट लिखने लायक हो जाओगे कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग और हडूप के बारे में नॉलेज है, क्योंकि फ्यूचर यही है यार, ये सर फ्यूचर एक है। सर एक क्वेश्चन ये है कि समझो, मतलब कोडिंग में इतना नहीं है, लेकिन काफी एक्स्ट्रा टूल्स जो भी होते हैं, जैसे सर कंटेनराइजेशन के हो गए, डॉकर, क्यूबरनेटिस, कोई सीएसडी के हो गया, जेनकिंस वगैरह हो गया, ये सब आता है, तो सर जॉब मिलने के चांसेस हैं सर फ्रेशर को? हाँ, बड़े चांसेस है यार, वो आजकल वो चल रहा है फुल स्टैक डेवलपर, है ना? हाँ नहीं नहीं सर, वो तो अलग चीज आ गई ना, लेकिन वो डेवऑप्स वाली नहीं नहीं, साइड में हाँ, अगर फ्रेशर डेवऑप्स को, डेवऑप्स डेवऑप्स डेवलपर्स हाँ नहीं सर, जॉब फ्रेशर को मिल जाती है सर। आजकल मिल जाएगी यार, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको चीजों की अच्छी नॉलेज है तो मिल जाएगी। ठीक है सर। डेवऑप्स की काफी डिमांड है आज के टाइम पे। हाँ जी सर। सर वो लेकिन फ्रेशर हायर नहीं करते सर, जहाँ भी देखो 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगते थे। देखो, ऐसे आप रिज्यूमे भेजोगे ना तो कोई भी आपको एंटरटेन नहीं करेगा। ठीक हाँ है, जी सर। जब ये ठीक हो जाएगा ना कोरोना वाला माहौल, अपना रिज्यूमे लेके कंपनीज में चले जाना, ऑन द स्पॉट वो इंटरव्यू लेंगे, तो थोड़ी कम सैलरी में मिलता है काम तो कर लेना। हाँ जी सर, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत वाइड है। आपको कितनी नॉलेज, कितने परसेंट नॉलेज है आपको इसकी? सर इन डेप्थ है सर, डोकर की, क्यूबरनेटिस की, तो और ये जेनकिंस वगैरह हो गया, गिट एंड गिटहब कर लेता हूँ सर। तो इन चीज़ों सर कोडिंग नहीं हो पाती सर, तो मतलब मेन, पाइथन में थोड़ा बहुत फिर भी हाथ मतलब सेट है, लेकिन इधर नहीं हो पाता सर, सी प्लस प्लस वगैरह में। नहीं नहीं, पता क्या है, देखो, कोडिंग तो जरूरी है यार। हाँ, अब उधर ही सर अब ये दिक्कत आ जो जाती काम हम इसमें कर रहे हैं ना, इसमें ये जो मैंने आपको अभी इतना लॉजिक बना के दिखाया है, है। हाँ जी सर। पाइथन में तो ये हार्डली एक फंक्शन बना हुआ है इसमें, बस आपको यूज करना। अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो ये लो, तो अगर मैं हाँ पाइथन सर, में नहीं दिखा, वो तो देखे हैं सर, मतलब पाइथन में फिर भी लॉजिक बन जाता है, इजी हो जाता है। नहीं नहीं, इसमें ये कहीं ना देखो कहीं ना, सर। ये यही है। अब देखो, ये एक एरे है, ठीक है, ये पाइथन में बेसिकली लिस्ट है, तो इसमें आइटम पॉप करना है। ठीक है, तो इसमें आइटम पॉप करना है यानी डिलीट करना है, तो हाँ जी बड़ा हाँ जी आसान सर। तरीका है, बड़ा सर ये आसान तो तरीका पता है है। ना सर, वही तो बोल रहा हूँ नहीं, कि इसमें तो इजी मैं है ना बता सर, रहा बने हूँ ना, बनाए फंक्शंस आपने पास। ये आउट ऑफ इंडेक्स, सॉरी, तो ये मान लो सेकंड इंडेक्स को आपको रिमूव करना है, ये लोग 30 रिमूव हो गए उसमें से। तो सर इसमें पाइथन के तो, अंदर ये है, ये देखो, ये हाँ जी 2 सर। लाइनों कोड है जो हमने अभी 5-6 लाइनों में किया है। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि इसमें तो सर बने बनाए फंक्शन से इजी हो जाता है, लेकिन जैसे टीसीएस वगैरह का एग्जाम है सर, सर उनका पाइथन का कंपाइलर चलता ही नहीं है, तो वो तो बंदा फिर गया ना सर। हाँ, नहीं नहीं, पता है, आप लोग आप लोग जिस स्टेज पे हो, हाँ जी सर। उस स्टेज पे कंपनी कहती है कि भैया तेरे को C++ तो आना ही चाहिए। हाँ सर, वही दिक्कत आ रही है सर। ठीक है, कंपनी ये कहती है कि ये आना तेरा धर्म है।
ठीक है, क्योंकि तू अपने आप को अगर बीटेक सीएससी बोल रहा है तो तेरा ये धर्म है, तुझे सी सी प्लस प्लस आना चाहिए। हाँ, हाँ जी। उसके बाद तेरे को पाइथन आता है, तेरे को हडूप आता है ना, तो ये तेरे कंधों पे एक स्टार है। हाँ जी सर। ये है, क्योंकि सी सी प्लस प्लस पे काम करो, जितने मैं आपको कोड बना रहा हूँ, अगर ये भी, अगर आप नहीं सर, किसी ये से- साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। हाँ, अगर आप किसी भी सीनियर से बात करो ना जाकर के कि यार तेरे को इंटरव्यू में क्या पूछा, वो यही कोड बताएगा आपको। ठीक है सर। ठीक है, मैक्सिमम यही कोड बताएगा। तो कोशिश करो कि इन कोड्स को, अगर आपको लग रहा है दिक्कत है, तो प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अपने आप याद हो जाएंगे यार, अपने आप याद। मुझे कैसे याद है, मैं प्रैक्टिस करवाता गया, पता नहीं कितने बैचेस को मैंने करवा दी, वो अपने आप माइंड पे छप जाते हैं। कई बार नहीं होता, लेकिन जब बनाने जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब आप एकदम से बोलो सर वो कोड बना दो, नहीं बनेगा। आप बोलो सर लिंक लिस्ट का कोड बना दो, नहीं बनेगा। लेकिन जब मैं उसके बारे में सोचूंगा, कॉन्सेप्ट सोचूंगा, उसका मैथमेटिक्स सोचूंगा, प्रोसेस सोचूंगा, तो फिर ऑटोमेटिकली बन जाता है। तभी हाँ मैं जी। कहता हूँ कि जो आपने अपना फोकस करना है ना, वो इन चीजों के ऊपर फोकस करो कि आप लॉजिकल के ऊपर पीछे भागो। जब आपका लॉजिक स्ट्रांग हो गया तो कोई भी प्रॉब्लम है वो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। सर वो जहाँ भी मैथमेटिक्स वाला पार्ट आ जाता है सर, वहाँ दिक्कत आ जाती है। तो मैंने तो यही बोला है कि आपको मैथमेटिक्स को आपने अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट नहीं करना। मैंने तो पहले दिन ही बोला है। आपने हाँ जी 10th सर। नहीं किया, आपने 10th किया हुआ है, हाँ जी सर। तो वही हम आप, मैंने देखो उस दिन आपको समझाया था कि हमने डिवाइड करना है, तो मैं आपको कौन सी क्लास में ले गया था आपकी, सर कौन सी डिवाइड क्लास तो में बहुत लेके, छोटी क्लास में आ जाता है। हाँ तो सेकंड क्लास में ले गया था। ठीक है, हाँ जी सर। सेकंड में ले गया था। तो मॉडुलस जब मैंने आपको बताया तो मैंने आपको बोला ये थर्ड या फोर्थ में हमने पढ़ा होता है ज्यादा फोकस। फिर मैंने आपको बोला प्राइम नंबर, वो आपकी 6th क्लास का स्टैंडर्ड है, 6th में हमें सिखाया जाता है प्राइम नंबर क्या होता है और कैसे निकलता है ना। तो ये है, डोंट डोंट डीमोटिवेट योरसेल्फ यार, कि आपको नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई मैथ? कोई बोल ही नहीं सकता आपको मैथ नहीं आता। आपने +2 किया है, 10th किया है, बीटेक में मैथ पढ़ा है, तो कैसे कोई बोल देगा यार। ठीक है, करवाऊंगा मैं आपको आगे एक मैथ का कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक भी बनाऊंगा, आपको एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट बताऊंगा कि आपने ये करना है। मेरे पास भी वो है नहीं, लेकिन आपने वो करना है। तो उसमें पूरी एल्गोरिथम, मैं आपको एक मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम बनाने का तरीका बताऊंगा C++ में, या इसमें सी में या C++ में। ठीक है, जो हम मशीन लर्निंग में यूज करते हैं। लेकिन वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको बनाते हो कि नहीं बनाते, लेकिन मैं उसका पूरा मैथमेटिक्स और पूरा तरीका आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो, ठीक है। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज डू लेट मी नो बिफोर क्लोज दिस सेशन। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो एक बार पूछ लीजिए। चलो ठीक है जी, फिर कोशिश करो कि आपके जो रिमेनिंग प्रोग्राम्स हैं एरे के, ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन, डोंट डू गूगल। गूगल करना है तो सिर्फ उसका लॉजिक समझने के लिए, उसका मैथमेटिक्स समझने के लिए, उस एल्गोरिथम को समझने के लिए।